इकबाल की प्रॉब्लम हो गई। कह रहे सी तुसी नहीं आए। मैं बड़ी देर तक चिंता ना कर। हेलो हेलो दो दिन आ गई सी जी। हेलो वो 2 दिन तो लॉगिन किया है, चिंता ना कर। अंचल ने आना है, पहले लॉगिन कर लिया 2 दिन पहले। संजय जी, हाँ जी सर, आवाज आ रही है? शशिपाल जी आ रही है सर, आ रही है जी। Okay, sorry for inconvenience. Eminent faculty CA Aanchal Kapoor, my professional colleagues, Ram ji to all of you. I extend warm welcome you to on this special session on recent amendments in GST. Friends, yesterday Honorable President clearly stated his mission with vision. It was an excellent communication with the members and students, and he covered almost every aspect concerned with us. As a partner in nation building, we stand firmly for the targets set by him to contribute rupees 21 crore to our PM Care funds. So I again humbly request you to come forward for this noble cause. I request all members to write some articles on any topic of your choice relating to profession, COVID-19, impact on economy for a e-newsletter. I request Shashipal ji to continue the session. Please stay indoors and take care of yourself and your family. Thank you. Now I request CA Aanchal Kapoor to kindly start your session. Thank you, sir. So we'll be starting this session with the greeting, not with hello, but namaste or sasriyakar to everyone. Hope we all are fine and enjoying learning amidst this COVID-19 period by sitting at homes. And I especially thanks Amritsar branch of NIRC for giving me this opportunity to share my views on the recent amendment in GST being done in the month of March and April 2020. Why I have specifically mentioned March and April 2020? Because of the reason that in April, amendments took place due to the COVID-19 impact. But in the March, the amendments came because of the impact of the meeting, which 39th meeting of the GST Council, which held on 14th March. So these changes which took place in March are not from COVID-19 viewpoint and are very, very technical changes which will be further applicable, right? So starting with it, one thing more I would like to mention. Let me yeah. First of all, I would like to tell you that the amendments in this case are divided into 3 parts. Those which took place on 23rd of March 2020, and secondly, a circular regarding refund which came on 31st March 2020. These both the changes are due to the press release dated 14th March, which was the resultant of 39th GST Council meeting. Other than this, the amendment which took place on 3/4/2020, those were due to the COVID-19 impacts. So, see, on 23rd March 2020, there was almost a flow of notifications from notification number 10 to 29, along with 2 circulars and 2 CT rate changes notification, which covered mobiles, etc. Sir, I would like to mention here that there was a seminar a few days before also on the GST amendments that was delivered by me only. So for some of the Amritsar branch members has also joined that seminar. So in order to make them in the seminar, we'll be starting up with the refund part first, this circular 135. Then we will move to the 23rd March notification, and then finally we will come to the notifications due to COVID-19 impact. I hope all are okay with it. Can I see it in the chat box? And furthermore, what I think so that the amendments owing to circular 135 and 23rd March are quite technical and will be requiring the practical. So I have got so many yes from all of you. Thank you so much. So let's proceed with it, right? Yeah. So first of all, what I am taking here is the circular dated 31st March. The first issue which this circular addressed, that bunching of refund claims across the financial year. To
I come to this point, I will first of all would like to present a example on it. What was before amendment and what is the impact after amendment? See, what happened March or April, where there is a cutoff of the year end. अगर मैं मार्च का मंथली रिफंड अप्लाई करती थी, बिकॉज इन नो केसेस मार्च एंड अप्रैल कुड हैव बीन क्लब्ड ओइंग टू पैराग्राफ 8 of circular 125, which was the master circular on GST refunds. Owing to this, March and April cannot be combined. See, a person could have applied the refund monthly, quarterly, anyhow. If he is on the quarterly returns, could have applied quarterly. Bunching can be done in any way. April till September, September till March. But where there is a cutoff of financial year, before this amendment, the bunching was not possible. Now, what happened? Various representations were received from the industry that this leads to very low rate of refunds and the eligible refunds are not able to be granted. How come? Let's see it with the example. See, in the month of March, this is a case of exporter who is 100% export-oriented unit. Exports were 0 in the month of March, whereas he purchased the goods and was eligible, as was having eligible purchase input. So, but because the exports was 0, and when we apply the formula as given in Rule 89, the refund amount was 0 because export amount was 0. Whereas the entire purchase was exported in the month of April. So April has an export, but no input. And while doing the formula, while applying the formula of Rule 89, the ITC for the period and the sale export for the period has to be taken. But because in one period the export was 0, in the other period the purchase input was 0, hence the refund amount came out to be nil in both the cases. And what is the impact after amendment? After amendment, now we can club 2 periods. March and April can go together. As a result, purchase input 1 lakh during the period of March and April being bunched together, export 12 lakhs, and the 100% eligible amount of 1 lakh will be available. So this is a benefit which is given, again saying not due to COVID-19, it is a journal amendment being brought into. Now coming towards the wordings of the law, it says why these changes have been brought in is because of the paragraph number 8 of circular 125, as I've already discussed, because this paragraph was restricting the claim spread across the financial years. Hence, it was held that now it will be allowed, and the paragraph 8 of circular 125 to the extent stands modified, right? Apart from this, there was a very important judgment of Honorable High Court in case of Pitambara Books Private Limited, which also led that it gave us a precedent that what is not written in the law, the circular cannot create it. It can only supplement the law. It cannot make any addition into the law. And there was no restriction in the law, neither in section 16(3) of IGST, nor in section 54(3) of CGST, which would have provided that the refunds across the financial years cannot be bunched. So keeping in view of the Pitambara Books judgment and the various representations being received from the industry, circular specifically mentioning about the merchant exporters, because they were not getting their refunds on time, being purchases made in one period, as we have taken it in the example 2, and export being done in the other period. So this is a welcome move by the government, where the refund claims across financial years can be bunched together, right? Moving ahead of it, the second change with the circular 135 has brought into the refund process is refund of accumulated ITC on account of reduction in GST rates. What happened? Owing to this meeting, there was a change in the goods rate of like handmade things and the other things. एक item जो पहले 18% पे taxable थी, the example is itself being quoted in the law itself, or as in case of lights, or in the notification which was recently brought in due to this change. What happened? A good X was getting firstly purchased at 18%. Now it was getting sold at 12%. So because there was a rate of reduction of GST, people were
claiming refund under the refund of accumulated ITC due to the accumulated ITC due to refund of unutilized ITC on account of inverted duty rate structure. Now, due to this reason, the government has specifically come out with a provision when their input and output supplies are the same. Means you are not a manufacturer or you are a trading concern, you cannot do so. You are not eligible for the refund. Although this provision is a bit challengeable, because in the law, the words input output has been mentioned in the section 54(3) itself, but nowhere it is specified that the trading concerns cannot take the benefit of it. And furthermore, specifically considering the scenario at present going on due to the COVID-19 situation, government is procuring certain items at very low rates from the suppliers. Like in case we have seen in case of Lifebuoy sanitizers, government is saying the suppliers to supply them at a reduced rates. Now, in that case, what will happen to those suppliers? If we come into this circular, they are purchasing the goods at a rate higher, they are selling it at a rate lower, and if the representation as being made by them to the government that the GST on these products should also be reduced. And if government reduces the rate of interest, they will not be so much benefited because of this circular. So owing to COVID-19 situation, the government should come up with it. But otherwise, it says that otherwise also, if your input and output product is same, means you are a trading concern, or originally being charged purchase of product being done at 18%, sale being made at 12%, you are not eligible for the refund of accumulated ITC on account of inverted duty structure, right? Coming towards the third amendment of Circular 135 dated 31st March 2020, see what change it has brought in. This circular point is linked to notification number 16/2020 also. 16/2020 भी उसी वजह से आई थी due to this press release of the government dated 14th March, और उसी के साथ उस पॉइंट को क्लैरिफाई किया और सबसे बड़ी क्लैरिफिकेशन दी कि ये प्रोविजन सिर्फ इसने बताया कि सर्कुलर 125 में A से लेकर L तक, these are the points where the refund categories have been created, जहां पे refund apply किया जा सकता है. अगर आपका रिफंड I to L की किसी कैटेगरी में फॉल करता है, listen, it is not applicable to exports, it is not applicable to inverted duty rate structure refunds. So it is only applicable from I to L clauses. क्या कहा गया? आपने जहां से पैसे पे किए, हम एग्जांपल लेके चलते हैं एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स की, आपने जहां से पैसे पे किए रिफंड वापस वही आएगा. दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस चेंज दैट हैज बीन ब्रॉट इन. जहां से जाएंगे वही वापस आएंगे. मतलब कैश लेजर से जाएंगे तो कैश लेजर में वापस आएंगे, क्रेडिट लेजर से गया होगा टैक्स तो क्रेडिट लेजर में रिफंड वापस आएगा. नाउ अब सोचिए इसके लिए क्या चेंजेस लाने की जरूरत थी. फर्स्ट थिंग दैट वाज रिक्वायर्ड, किस फॉर्म से वापस आएगा क्रेडिट लेजर में. सो अमेंडमेंट मेड PMT 03. इट सेड वापस आएगा PMT 03 से. पहले हमने देखा था PMT 03 सिर्फ इशू करते थे जब रिफंड रिजेक्ट हो जाता था. अमेंडमेंट ब्रॉट इन, अब रिफंड सैंक्शन होने पर भी उतना पैसा क्रेडिट लेजर में वापस आएगा थ्रू PMT 03. सेकेंड, अब ये बताएगा पैसा वापस आएगा जी डिवाइड होके. तो रूल्स, two rules have been amended due to this, right? First rule that has been amended is Rule 86, where 4A section has been inserted. See, the rule has been, the sub rule 4A has been inserted. The rule has been amended through notification 16/2020. And the 92(1)A has also been inserted through notification 16/2020 dated 23rd March. And these points have been clarified while circular dated circular number 135. So this will be a combined reading of circular 135 and notification 16/2020. Now, I would like to explain this also again with the help of a practical example.
just have a look on it. What it says, मेरे actual sales का amount था 1 lakh rupees और मेरा product 5% पे taxable था. 2500 CGST, 2500 SGST. But while entering the sales in 3B, inadvertently, the amount of 2500 each was mentioned as 5000 each. It was an inadvertent error. And by the time I could have known it, the time period for rectification, yani wo September cross kar chuka tha, I could not rectify it through 3B. I thought it's okay. The time of refund is still available. जब वो 10,000 पे किया था, तो 7,000 तो मेरी क्रेडिट लेजर में बैलेंस पड़ा हुआ था, जहां से पे कर दिया गया, और 3,000 जो था वो कैश लेजर से पे किया. अब कितना ज्यादा चला गया गवर्नमेंट को? 5,000 rupees was excess paid to the government. अब जब 5,000 rupees was the excess paid to the government, I applied for the refund of 5,000 rupees. What was the old law and what was the new law? ओल्ड लॉ में क्या था, जब मेरा रिफंड सैंक्शन होता था, RFD 06 में मुझे रिफंड मिलता था, तो 5,000 का 5,000 मेरे कैश लेजर में आता था, यानी मुझे रिफंड वाउचर आता था. डोंट यू थिंक सो? 3,000 कैश में पे किया, वापस 5,000 आया, यानी 2,000 रुपीज मैंने अननेसेसरी एनकैशमेंट ऑफ क्रेडिट लेजर किया. दिस इज गवर्नमेंट्स व्यू एंड दैट इज व्हाई आई सेड नो. जहां से पे किया वहीं वापस करना करेंगे. आपने पे कहां से किया था? 3,000 कैश में, यानी RFD 06 will be issued for 3,000 rupees and the balance 2,000 will be credited back to the credit ledger through the form PMT 03. So as a result, पहले ये rule insert हुआ in the 92, then PMT 03 rule 86 amend हुआ to include PMT 03 can also be issued when the refund is sanctioned. Apart from this lead to one more situation. Same example I have quoted, but I have added that I had an outstanding dues of rupees 1,000 also. 1,000 रुपए के मेरे कोई पुराने ड्यूज थे. आपको पता है, whenever department issues the refund, it has to settle the old dues. ओल्ड लॉ में क्या था? 5,000 का मुझे रिफंड वाउचर बन के आना था, 1,000 रुपया इससे एडजस्ट हो जाता था, और 5,000 रुपीज मुझे 5,000 में से 1,000 कट के RFD 06 was issued for 4,000 rupees. But what the new law says that if there is a liability against any outstanding dues, then it will first be adjusted from the cash amount. यानी RFD 06 3,000 2,000 का इशू होगा. Although जब हम नॉर्मली अपने आउटस्टैंडिंग ड्यूज पे करते हैं DRC 03 के थ्रू, we are allowed to pay through cash as well as credit. But government, instead of allowing it proportionately 1,000 through cash or credit, has specifically mentioned that the entire outstanding dues of 1,000 will be adjusted from the cash element, and the balance whatever left will be credited to the credit, will be given in cash, and the amount which has been paid through the credit ledger will be back to the credit ledger. I hope this provision is clear. This was the main rule 92(1)(a) and 86(4)(a) that has been inserted to bring the changes. Coming towards the next. Guidelines for the input tax credit, yani 54(3). This is one of the major changes that has been brought in, although without first talking about the legality of the provision, because you know already the issue is growing up that whether 2A is a document to be relied on to restrict a person from taking a vested right into it, because to take the credit when the invoice is available, everything is available, amidst these technical glitches, क्या सिर्फ 2A के basis पे मेरा credit restrict किया जा सकता है? But the government's move, why this circular or under this 135 circular is particularly pointing out that 2A is one of the important vital document. And as per the various references, representations received from their field officers, they have said that जितना 2A में bills आ रहे होंगे, हम उन्हीं bills के against refund देंगे अगर आपका refund
इनपुट क्रेडिट से रिलेटेड होगा. It means, considering the provisions, it says if you are applying for a refund of unutilized input tax credit and the invoices which are not reflecting into it, although you have a copy of those invoices. पहले क्या हो रहा था, as per circular 125 para 36 के according, हमें पहले जो इनवॉइसेस हमारे 2A में नहीं आ रहे थे, यू ऑल हैव डन द रिफंड्स, वी वर गिविंग द कॉपीज ऑफ सच इनवॉइसेस, और वो कंसिडर हो जाता था कि ये इनवॉइसेस नहीं आ रहे, इनके ओरिजिनल कॉपीज अवेलेबल है, ऑल द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 16 आर बीइंग फुलफिल्ड, एंड हेंस वी वर गेटिंग द रिफंड्स. बट नाउ only those invoices which are reflecting in 2A will be eligible for the refund purposes. Don't you think that even in case of rule 36(4), which gives a leverage of 10%, that has also not been given in this? It says 100% whatever is being reflected in your GSTR 2A will be given the refund for. So this will be challenged because already the issue is under litigation that only on the basis of 2A, a vested right of the person, of the assessee, cannot be restricted, specifically when GSTR 2 has not yet come into picture. Even after the 3 years, we are near to complete, we are in the 3rd year, we are near to complete the 3 years of GST, but still you see no appellate tribunals, technical glitches, every time the date extensions, and so many things. And in that case, we are not even able to respond what is being uploaded by the supplier in GST, in his GSTR1 being reflected in my 2A. So this can be challenged on all these grounds. Now, coming towards the next. Again, the funds process is going to be tougher and tougher in the sense of the compliances also. I want to show you one annexure B. This was the annexure B, जो कि as per master circular 125, जब भी हमने refund लेना होता था unutilized input tax credits का, तो this annexure B we were required to submit. In this, we were to tell, because आपको पता है कि कुछ केसेस में इनपुट सर्विसेज का रिफंड नहीं है और हर केस में इनपुट के केस में कैपिटल गुड्स का रिफंड नहीं है. तो जब हम इनपुट्स की अपनी आईटीसी की डिटेल देते थे, वो हमसे पूछता था एज पर 125 सर्कुलर कि ये पर्टिकुलर चीज आपकी इनपुट है, इनपुट सर्विसेज है, ये कैपिटल गुड्स है. दिस कॉलम ऑफ इट, द कॉलम नंबर 7. बट नाउ द फील्ड ऑफिसर सेड we are just relying on what the person is saying. We are unable to check that whether the classification given by the assessee is correct or not. Owing to this situation, they said now the HSN code or SAC code of the services are required to be mentioned along with it. As you know, in case of exports with the under bond or LUT, input services refund is available, but whereas in case of unutilized credit due to inverted duty rate structure, only inputs are eligible for the refunds. So, and capital goods are nowhere eligible. So, considering all this situation, HSN or SAC has been demanded, but a relaxation given that if it is not mandatory for your supplier to quote in the bill the HSN or SAC and he has not quoted it, then you need not to search it and you can just leave it. But how practical it is possible? I don't feel the HSN or SAC, but imagine it, how the field officer will get to know that whether it has actually been quoted in the bill or it has not been quoted in the bill. So the amendment made is firstly increasing the compliances for the purposes of refund, and secondly, moreover, the quoting of HSN or SAC, how it will be helping amidst this situation that कुछ भी ऐसे suppliers होंगे जिनकी turnover are beyond the levels of HSN, so we will not be able to supply those HSN. So these are the changes which have been brought in by circular number 135, which particularly dealt with the refunds. I hope any query under this we can take up, so that I've in the chat box, if anybody wants to ask anything about circular 135, we can.
So no queries, या तो सब कुछ समझ आ रहा है या कुछ भी समझ नहीं आ रहा है. So no message being received, assuming period of refund is not relevant. Weber, what are you referring to? I could not get. Can you please explain? अंचल मैम एक सेकेंड, किसी की अगर कोई क्वेरी हो वो अपने आप को अनम्यूट करके क्वेरी पूछ सकता है. ठीक है, आई रिपीट, किसी की अगर कोई क्वेरी है वो अपने आप को अनम्यूट करके प्लीज क्वेरी पूछ लो. Vaibhav, I get back to you. We'll be requiring some more details about the query you have asked. So moving further, because lots of notifications are to be covered. So moving ahead. Hello. Now, yes, ma'am. आंचल, ये बताना कि ये जो हमने फाइनेंशियल आगे से होगा कि हम पिछला वाला भी कुछ ले सकते हैं? Ma'am, Retrospective है I ये will आगे? come to that point that the bunching of refund will apply prospectively because the change was brought in by the notification, the change in the circular, but means जो refunds अब से apply होंगे आप उनके लिए कर सकते हो. Coming to that issue थोड़ा सा explain कर देती हूँ. मैम, जो refund already applied for हो चुके हैं, यानी जिनमें उसका क्रेडिट, ये अगर मैं इस एग्जांपल पे हूँ जिसमें उसका रिफंड 0 हो चुका है, नील हो चुका है. इफ यू नो सर्कुलर 125 का पैरा 8 इटसेल्फ कहता है कि आप उस कैटेगरी में दोबारा रिफंड अप्लाई नहीं कर सकते. अब वो पैराग्राफ तो अमेंड किया ही नहीं गवर्नमेंट ने. इसका मतलब सेम कैटेगरी में तो मैं रिफंड नहीं अप्लाई कर सकती, बट हाँ एनी अदर कैटेगरी में अगर एक पर्सन चाहे जो रिफंड उसका 0 हो चुका था वो अप्लाई एनी अदर कैटेगरी में कर सकता है. बट द गवर्नमेंट, वी हैव सीक्ड क्लैरिफिकेशन इन दिस रिस्पेक्ट एंड द गवर्नमेंट हैज येट टू कम आउट विद इट because but the refunds which will be applied prospectively, for that the bunching can be done. The refunds which have already been applied for in the same category cannot be March 19 मैम. पीरियड कोई भी हो सकता है. अभी आपके 2 साल तो एक्सपायर हुए नहीं उस रिफंड के लिए. पीरियड के रिस्पेक्ट में नहीं है ये. द रिफंड which will be prospectively applied for whatever period. I hope it is clear. Sujit ma'am? हाँ जी, clear. Thank you. Okay. Right. Now, moving ahead. See, the notification 16 is itself a bit technical notification, so would like to take it first. सिर्फ इसका एक clause rule 43 हम last में करेंगे. बाकी नोटिफिकेशन 16 को हम अच्छे से डील करेंगे, जिसके हमने 2 अमेंडमेंट्स कवर भी कर लिए हैं विज़ सर्कुलर 135, राइट. तो जिसमें हमने 86 और 92 रूल्स में अमेंडमेंट जो है, इंसर्शंस जो है वो कंसिडर किए हैं. नाउ कमिंग बैक, व्हाट दिस नोटिफिकेशन सेज 16/2020 सेज, अगर आप अब एक नई रजिस्ट्रेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2020 अप्लाई करेंगे, 1/4/2020 जो नोटिफिकेशन जब के बाद अगर आप कोई जीएसटी नंबर अप्लाई करते हैं तो आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ दैट नंबर इज मस्ट. इसके लिए आई वुड लाइक टू टेक अ बिट बैकग्राउंड ऑफ दिस चेंज दैट हैज बीन ब्रॉट इन. जो फाइनेंस एक्ट 2019 था, सेकेंड फाइनेंस एक्ट, उसमें which became applicable from 1st January 2020 में जो एप्लीकेबल हुआ, उसके अकॉर्डिंग, उस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 6A, 6B, 6C, 6D 4 सेक्शन जो थे ब्रॉटिंग किए गए अंडर सेक्शन 25. सेक्शन 6A कहता था जो पुराने पर्सन्स भी हैं who are already registered persons, जो पुराने रजिस्टर्ड पर्सन हैं उनको भी आधार ऑथेंटिकेशन करानी पड़ेगी एज पर द रूल्स प्रिस्क्राइब. लेकिन अभी तक पुराने लोगों के लिए जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उनके लिए आधार ऑथेंटिकेशन के रूल्स नहीं आए हैं. सेकेंड 6B कहता था, जो अभी मैं सेक्शन की बात कर रही हूँ, सेक्शन 25 क्लॉज 6B which used to say कि अगर आप कोई नई रजिस्ट्रेशन इंडिविजुअल अप्लाई करेगा तो इंडिविजुअल उस केस में भाई साहब आपको अपना आधार ऑथेंटिकेट कराना पड़ेगा.
as per the rules prescribed. This was brought on for 1st January 2020. Government अब rules लेके आई है. 6C ने कहा every person other than individual, अगर तुम भी कोई registration अप्लाई करोगे 1/4/2020 के बाद तो तुम्हें भी करना पड़ेगा आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट. और 6D ने कहा कुछ ऐसे कैटेगरी ऑफ पर्संस होंगे जैसे कि दोज पर्संस हु आर नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया, जिनके पास आधार है ही नहीं, हम उनको नोटिफाई करेंगे और उन लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराना है. यानी सेक्शन 25 में 4 सब सेक्शंस इंसर्ट किए जिसके रूल्स कहा आगे जाके दिए जाएंगे, जो नोटिफिकेशन 16/2020 में दिए गए. इन्होंने कहा सबसे पहला रूल 8 एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अमेंड हुआ एंड इट वाज मेंशन्ड कि जो पर्सन अब 1/4/2020, listen, the date of application of this rule amendment is 1/4/2020. It has already been brought into force, whereas the other parts of the notification will be covered from the date of their notification in the official gazette. तो नोटिफिकेशन की स्टार्टिंग में लिखा है जहां जहां डेट है वो उस डेट से आएगा और बाकी तब से आएगा जब से वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई होगा. दिस हैज ऑलरेडी बीन ब्रॉट इनटू. अब इस रूल ने कहा व्हाट अबाउट द केसेस जहां आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पा रही है. ट्रस्ट मी, 3 दिन का टाइम पीरियड है ओरिजिनली कि 3 वर्किंग डेज में जीएसटी नंबर आता है. बट अगर ड्यू टू एनी रीजन आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करा पाते, you don't have Aadhaar or it is the Aadhaar is not getting authenticated, then in that case आपके premises की, or not only premises, person and the premises दोनों की फोटो ली जाएगी. Officer will physically verify the place of business and will give a report of the physical verification in form GST REG 30. Now कितने दिनों में नंबर आएगा? 3 days का टाइम पीरियड हैज बीन एक्सटेंडेड टू 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन. यानी अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करा पाए तो आपकी एप्लीकेशन 60 दिन तक भी डिले हो सकती है. जो ऑफिसर ने फिजिकल वेरिफिकेशन पर्सन प्लस अदर प्रेमाइसेस की रिपोर्ट देनी है वो 15 दिन में, फिजिकल वेरिफिकेशन करने के 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देगा और ये 15 दिन का टाइम पीरियड 60 डेज के टाइम पीरियड में इंक्लूडेड है. रीजन, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पीरियड फॉर अलॉटमेंट ऑफ नंबर इज 60 डेज. सो इट इज वन ऑफ द पॉइंट. ये क्यों आया? ड्यू टू कर्ब द मेजर्स ऑफ फेक इनवॉइसिंग. एज यू नो, कई लोगों ने नंबर लिए हुए थे टू दोज पर्सन्स हु आर नॉट एलिजिबल. और स्पेसिफिकली अगर मेरा आधार नंबर किसी स्टेट के बाहर का है, नाउ ऑफिसर इवन दैट विल बी चेक्ड एंड दैट पॉइंट आल्सो विल बी कंसीडर्ड. सो दैट इज व्हाई इन ऑर्डर टू curtail the practices of fake invoices and to keep a check, this provision has been inserted. Now what is happening these days about these provision? अभी इन्होंने ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर का कॉन्सेप्ट 1/4/2020 से एप्लीकेबल कर दिया है, बट क्या वेरीफाई हो पा रहा है? आई हैव ब्रॉट इन द स्क्रीनशॉट फॉर यू. नाउ एट द प्रेजेंट वी आर जस्ट पुटिंग द आधार नंबर. आधार नंबर को वैलिडेट करता है और बताता है कि आधार नंबर ठीक है कि नहीं. चाहे आंचल में सुखजीत मैम का डाल दो, चाहे सुखजीत मैम के लिए नवेंदु सर का डाल दो या इकबाल जी का डाल दो. द नंबर शुड बी करेक्ट, but what are the credentials of that number that are not getting verified? Or let me tell you, ये 1/4/2020 से पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है. Now the provisions have come. If the Aadhaar is not authenticated and it has been made mandatory, the physical verification of the premises is required to be done. So अभी यही प्रोसेस है. फील्ड ऑफिसर्स को भी इसका कोई इंटीमेशन अभी तक कोई एक्स्ट्रा का मींस द एडिशनल check which they have to do has not yet been received by them. But see, if your Aadhaar will not get authenticated, the registration can be delayed up to 60 days from the date of application. Now coming towards the next point, yeah, I heard that 5 crore limit हो गई है, 5 crore. लेकिन make it a point, the 5 crore limit for financial year 18-19 annual return is only
extended, is only increased for the purpose of reconciliation statement, that is 9C, and not for the purposes of GSTR 9. 5 करोड़ की लिमिट जो हुई है वो सिर्फ और सिर्फ 9C reconciliation statement के लिए हुई है. So coming thereby, अगर मेरी टर्नओवर फॉर फाइनेंशियल ईयर अप टू 2 करोड़ है, 9 भी ऑप्शनल है, 9C भी ऑप्शनल है. 2 करोड़ से 5 करोड़ तक है, 9 मैंडेटरी है. मेक इट अ पॉइंट, 9 इज मैंडेटरी ओनली. Am I audible? Because it's showing your internet connection is unstable. Iqbal ji, am I audible? Yes, you're audible. Okay. Now, coming towards it, it says that, yeah, 9 is optional up to 2 crores, 9C is optional, but 2 to 5 crore, 9 is mandatory, 9C is optional, and above 5 crore, both are mandatory. ये 16 नोटिफिकेशन ने हमें बताई है लिमिट 5 करोड़ की, जो 9C के लिए बढ़ाई गई है. इसी के साथ नोटिफिकेशन 15 आई है, जो हम आगे जाके डील करेंगे, जिसने 9 और 9C दोनों का टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया है 30th से 2020 तक. अब वो क्या रहता है, यही रहता है और इंक्रीज होता है. लेट्स सी फर्दर ड्यू टू दिस COVID-19 impacts. Now coming towards the next, can I yeah, sorry for it. Now, apart from this, the next change that has been brought in by notification number 16 by 2020 is that this refund of zero rated supply without tax under the bond. What this rule said, जब हम पहले एक्सपोर्ट टर्नओवर का रिफंड लेते थे, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, तो जो हमारा एक्चुअल एक्सपोर्ट अमाउंट होता था हम वही कंसिडर करते थे. But now a restriction has been put in, and trust me, this is going to be a very vital restriction that has come up with and taking its legality. Let's have a look on it. It says आपने जो एक्चुअल अमाउंट पे एक्सपोर्ट किया और 1.5 टाइम्स वही चीज अगर आप डोमेस्टिक मार्केट में बेचते हैं, और अगर आप नहीं बेचते, आपके जैसा सिमिलरली प्लेस्ड सप्लायर बेचता है, so in that case हम उसका 1.5 times करेंगे, whichever is less, यानी it is going to reduce my refund amounts in case of exports. And how it is going to become, and this provision has been inserted in case of refund of input tax credit when the exports are made under bond or LUT. Now let's have a look with an example here. One of my client who is a rice exporter, right, domestically supplying rice also and exporting the rice also. For 100 kgs, same quality of rice which he is exporting, he is charging 8,036 per 100 kilograms. और उसने इस महीने में लेट्स सपोज 10,000 किलो की एक्सपोर्ट की. अमाउंट के अमाउंट टू बी, लेट्स हैव अ लुक ऑन द फर्स्ट बिफोर अमेंडमेंट पार्ट ऑफ इट. 8 लाख उसकी जीरो रेटेड सेल्स हो गई. सेम माल मार्केट में सप्लाई किया डोमेस्टिकली, तो उसकी सेल हो गई 1,05,000. वो माल जो उसने द गुड्स व्हिच ही डिलीवर्ड इन डोमेस्टिक मार्केट वर चार्जेबल एट द रेट ऑफ 5250, 5,250 रुपए पर 100 kgs का रेट था. टोटल सेल हो गई 9,08,600. उसका आईटीसी था 1 लाख रुपीज. फॉर्मूला लगाया एज पर रूल 89, 1 लाख इंटू 8 लाख डिवाइडेड बाय 9 लाख. रिफंड अमाउंट एलिजिबल, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई एज यू नो एक्चुअल अमाउंट था 8,03,600 ही, और रिफंड आया 88,443 का, यानी जो डोमेस्टिक के अगेंस्ट हुआ उसका रिफंड मुझे नहीं मिलेगा. नाउ व्हाट हैज द चेंज दैट हैज बीन ब्रॉट इन. एक्चुअल में मेरी जीरो रेटेड सेल्स थी 8 लाख की, बट लेट्स कम टू द लास्ट कॉलम, लास्ट सेकंड कॉलम, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई definition has been amended to include that 5250 which was the domestic price का 1.5 times कर दीजिए, applying it on the same quantity 10,000 kgs
the amount comes out to be 787,500. यानी मेरी एक्सपोर्ट कितने की मानी जाएगी? 7,87,500 की. But make it a point, adjusted total turnover has not been changed. I have already mentioned we have to see the quality, the supplier, same supplying or the similar supplier. It is almost the provisions like as an income tax, we did it in transfer pricing purposes, right? Now, it said that 7,87,000 मेरा denominator change नहीं होगा, adjusted total turnover उतनी ही रहेगी जो पहले थी, जो actual थी. Now the refund amount comes out to be 86,671. If you can see the formula, I have marked the figure in red. The export turnover, zero rated turnover will now be taken as 7,87,500. So you see 88,000 से मेरा refund 86,000 पर आ गया. So इन्होंने एक restriction impose की, दोनों में से lower लिया जाएगा. As a result, if I am making the export in what I will say, in this case the person can resort to, अगर उसके differences ज़्यादा हैं, on the payment of tax वाला criteria and can claim the full. But that will also be subject to certain conditions, because as I said to my supplier, there are certain issues involved in it. His product was exempt. The rice was exempt because it was unbranded rice. So I should make it taxable, right? So, considering the points, so this point need to be checked in the light of this perspective, that whether we can shift to the or whether it will be beneficial to shift to the payment basis rather than underbond or IUT basis. Next issue, the rule 96B has been inserted. Now, would like to see in the chat box, मैं थोड़ा सा 96B बताती हूँ, but would like to be an interactive session and will asking a few questions. That 96B कहता है, आपने एक्सपोर्ट कर दी, गुड्स एक्सपोर्ट कर दिए, आपको पैसे नहीं आए, आपने गुड्स एक्सपोर्ट कर दिए, आपको पैसे नहीं आए, यानी एक्सपोर्ट्स प्रोसीड्स रियलाइज नहीं हुई, आपको वो रिफंड वापस करना पड़ेगा. आई एम नॉट गोइंग इनटू द टेक्निकलिटीज, जस्ट गिविंग यू फर्स्टली द ब्रीफ आइडिया ऑफ न्यू रूल 96B being inserted. 96B only and only talks about goods export, whether done under LUT or whether done on the payment basis of IGST. Now my question is, what about the services? 96B does not talk about the export proceeds of services not realized. Can I see the answers, please? Nisa can check your query. We'll come to it a bit later. Yeah, please. Any replies? Okay. I come to the point. It says that इससे पहले एक रूल था 96A. 96A रूल में सर्विसेज ऑलरेडी कवर्ड थी, बट विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. अभी हम 96 और 96B का कंट्रास्ट भी एक बार करेंगे. या सुजीत मैम, यू हैव रेफर्ड टू BRC. 100% BRC is there in case of services because एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की डेफिनेशन भी डिमांड करती है. रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड सर्कुलर 125 भी इसको रेफर करता है. बट वी विल हैव अ कंट्रास्ट बिटवीन रूल 96A एंड रूल 96B बिकॉज 96B इज फॉर द एक्सपोर्ट्स एंड 96A इज फॉर द पर्पसेस ऑफ goods as well as services. Right? Now, firstly, elaborating the provision of Rule 96B. इसको मैंने ना एक छोटे से डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है. लेट मी कम टू दैट सो दैट इट कैन इजीली बी अंडरस्टूड. एक इफ यू कैन सी द डायग्राम, सबसे पहले ये एक हमें घुमाएगा. सबसे पहले क्या हुआ, मैंने एक्सपोर्ट कर दी. स्टेप 1 मैंने एक्सपोर्ट कर दी और हमारे सीए साहब जो भी पार्टी के थे, ऑल आर सो गुड दैट द पार्टी गॉट द रिफंड आल्सो. एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की और रिफंड भी ले लिया. 2 मिनट के साइड के क्लाउड्स को अगर हम ना देखें, कॉल आउट्स को ना देखें, इग्नोरिंग दैट, हमने गुड्स का रिफंड भी ले लिया. पहले तो हमारा काम यहीं पे आके खत्म हो जाता था. रिफंड चाहे बॉन्ड के अंदर है, चाहे IGST पेड का है. बट नाउ अगेन अ न्यू restriction, a new provision has been inserted which says
सिर्फ यहाँ पे काम खत्म नहीं होगा, इन केस ऑफ गुड्स आपको एक्सपोर्ट प्रोसीड्स भी पता करनी पड़ेगी अपने क्लाइंट से कि भाई साहब एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रियलाइज हुई हैं या नहीं हुई है इन द टाइम पीरियड जो फेमा ने अलाउ किया है. सो दिस टाइम पीरियड इज अबाउट 9 months originally, but due to COVID-19 situation, I'm not talking about any change in GST, I'm talking about the FEMA regulation we changed due to COVID-19. ये export proceeds का period 15 महीने कर दिया गया. So जब भी हम इस provision को इस period के लिए लगाएंगे, so my humble request to all the chartered accountants, advocates, whosoever are attending it, is that the period of extended period of 15 days should be considered. So export proceeds मुझे realize नहीं हुई. अब क्या हुआ, जब मेरा टाइम पीरियड एक्सपायर हुआ 9 months 15 months जो मुझे फेमा ने अलाउ किया था, उसके 30 डेज के बाद मुझे लिया हुआ रिफंड विद इंटरेस्ट डिपार्टमेंट को वापस करना पड़ेगा. अब वापस भी चला गया, जब वापस चला गया तो पार्टी की थी अब मेरी एक्सपोर्ट प्रोसीड, और अगर उसने वापस नहीं किया ना तो हमारे अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 73 और 74 इनिशिएट कर दी जाएंगी. अब जब ये हो गया, रिफंड आया, रिफंड वापस भी चला गया, विद इंटरेस्ट चला गया, देन द पर्सन गॉट द एक्सपोर्ट प्रोसीड्स बैक, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आ गई, रियलाइज हो गई. तो फिर भी लॉ ने ये ओपन छोड़ा है कि आप ओपन इन सेंस की प्रोविजन में डाल दिया है कि अगर आप 3 months के अंदर अंदर जब से आपको वो पैसे वापस आया, आप उस रिफंड को दोबारा से ले सकते हैं. 3 months from the date of realization of those proceeds, आप दोबारा से वो रिफंड गवर्नमेंट से डिमांड कर सकते हैं. एक्सपोर्ट की रिफंड लिया, रिफंड वापस दिया, रिफंड वापस लेने का भी प्रोविजन है. Now let me come to a contrast, a comparison with rule 90, the rule 96A. Rule 96A already था. वो कहता था कि अगर आपने गुड्स को एक्सपोर्ट किया और गुड्स 3 महीने में एक्सपोर्ट नहीं हो पाए और आपने उनका एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड या एलयूटी किया है, आपने बॉन्ड और एलयूटी में उसके ऊपर 0 टैक्स लगा दिया, ठीक है, और आपके वो गुड्स एक्सपोर्ट नहीं हुए. अंडरस्टैंड द प्रोविजन, व्हाट इट इज ट्राइंग टू से. आपके वो गुड्स एक्सपोर्ट नहीं हुए, कहते ठीक है ना, एक्सपोर्ट नहीं हुए तो उस पर टैक्स भर दो. एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स उसमें भी था, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में भी लिखा था 1 साल का टाइम पीरियड था. यहाँ फेमा का टाइम पीरियड है, वहां पे 1 year का टाइम पीरियड था. वहां कहा गया था 1 year में अगर आपके एक्सपोर्ट प्रोसीड्स ऑफ सर्विसेज रियलाइज नहीं होते तो आपको वो रिफंड नहीं. क्यों, वहां तो मैं एलयूटी की बात करी थी, अभी मैं एलयूटी का प्रोविजन है 96 से. तो जो आपने एलयूटी ली हुई है, अगर 1 साल में आपकी वो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स के पैसे नहीं आते तो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा. जब वो नहीं माना जाएगा तो आपने क्योंकि एलयूटी के अंदर उस पर टैक्स नहीं पे किया था, अब पे कर दीजिए. सो दिस इज रूल 96A. लेकिन एक प्रोविजन में डिफरेंस देखिएगा, टाइम पीरियड 9 महीने है, 1 year है, ओके, वहां पे 3 महीने भी है अगर एक्सपोर्ट नहीं होती तो गुड्स की. बट यहाँ पे कहाँ डिफरेंस है, इसमें आपको एक प्रोविजन दिया गया, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स दोबारा रियलाइज हो जाएंगे तो भाई साहब दोबारा आ जाइएगा, अपना रिफंड वापस ले जाइएगा. वहां पे प्रोविजन नहीं दिया. 1 साल बाद और एक्सटेंडेड पीरियड एज अलाउड बाय द कमिश्नर, अगर उसमें भी आपकी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स ऑफ सर्विसेज नहीं आते हैं इन केस ऑफ एलयूटी के अंदर, तो इन दैट केस आपको दोबारा रिफंड का मैकेनिज्म हैज बीन लेफ्ट ओपन 96A रूल में. So I hope with this the export rule 96B insertion has been clarified that in case of goods, इसका मतलब goods export नहीं हुए, A में 3 महीने का टाइम पीरियड है, LUT अप्लाई की हुई है, आपको वो पैसा देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम दिस आपने रिफंड ले लिया है, रिफंड वापस करना पड़ेगा ऑन गुड्स अंडर 96B. So with this part insertion of rule 96B of notification number 16/20 also stands clarified. Sir, जैसे ही 96B रूल चेंज हुआ, गवर्नमेंट ने एक अंडरटेकिंग और मांग ली. मैंने ऊपर जो दिया है दैट इज द स्पेसिमेन कि किस किस केस क्या क्या हम देखते थे जब भी हम एक्सपोर्ट करते थे. ऐसे ही स्पेसिमेन का मेंशन हमारे सर्कुलर नंबर 125 में ऑलरेडी है
कि ये रूल में हम अंडरटेकिंग देते थे, एक नया क्लॉज अंडरटेकिंग में ऐड कर दिया कि अगर मैं 96B के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करूंगा या करूंगी तो मैं इसको वापस दे दूंगी. बट द एनॉमली ऑफ द सिचुएशन इज द अंडरटेकिंग refers to proviso to section 16 of IGST Act 2017, and there is no proviso in section 16 of IGST Act 2007. I think so. This is an error, which it should be the provisions of section 16 of IGST Act rather than the proviso to section 16, because as in the section 16 of IGST Act there is no proviso. So this undertaking also now we are required to do, and on our part, being professional, the duty furthermore increases to take the information from the client concerned whether the export proceeds are getting realized on time or not. अच्छा जी, इसमें एक और प्रोविजन था, अगर आपके एक्सपोर्ट प्रोसीड्स राइट ऑफ कर दिए गए हैं आरबीआई की परमिशन से. So let me tell you, हर एक केस में ना अलग अलग प्रोविजंस है राइट ऑफ के. फॉर एग्जांपल इन राइस इंडस्ट्री इट इज 10%, they can write it off up to 10%. तो अगर आपने आरबीआई की परमिशन से उतने विद द आरबीआई परमिशन उतना एक्सपोर्ट राइट ऑफ हुआ है, उसके प्रोसीड्स नहीं आने हैं, तो वो अलाउड है. सो अदर देन दैट, अगर आपके बैड डेट्स हो जाते हैं, आपको एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रियलाइज नहीं हो रहे हैं एज पर द टाइम पीरियड अलाउड बाय फेमा, यू आर रिक्वायर्ड टू रीपे द रिफंड. राइट, सो राइट ऑफ का प्रोविजन भी आपको अपने क्लाइंट से पूछना पड़ेगा. इन सम केसेस इट इज 5%, इन सम केसेस इट इज 10% राइट ऑफ इज अलाउड. और प्रॉपर्ली उसके लिए सीए का सर्टिफिकेट भी जाता है व्हेन द क्लाइंट राइट्स ऑफ कि भाई मैंने 10% से ज्यादा राइट ऑफ नहीं किया, बैंक डिमांड करता है इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स. राइट, सो विद दिस नोटिफिकेशन नंबर 16 के मेजर पार्ट्स हैव बीन कवर्ड एक्सेप्ट अ चेंज ऑफ रूल 43. ये ना समझेगा कि रूल 43 हम करेंगे नहीं, करेंगे with detailed this examples on it, practical examples of rule 43, but I have kept it for the last because अभी जो हमें एक पार्ट कवर करना है जो कोविड-19, जो हमारा थर्ड पार्ट था फर्स्ट स्लाइड का, which talked about कि कोविड-19 की वजह से क्या क्या डेट्स का, will not say extension all the time, क्या रिलीफ्स मिले हैं और क्या एक्सटेंशंस मिले हैं. राइट, सो now I am coming on the third part of the first diagram. 3 हिस्सों में हमने amendments describe की थी. पहला हमने circular किया 135 dated 31st March. फिर हमने एक notification which was one of the technical notification 16 along with it 15 को थोड़ा सा discuss किया, and बाकी सारी notification ना बहुत छोटी-छोटी है, date extension ये वो. This was the only notification which talked about the rule amendments. And now we are into the third sphere which talked about क्या क्या recent changes due to COVID-19 आएंगे. I have grouped it into composition dealer. अगर मेरे पास कोई composition dealer आए और वो ऑप्ट करना चाहता है composition इस साल में, यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए उसने ऑप्ट करना था. आपको पता है फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले एक्चुअल डेट क्या थी, फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले उसको कॉम्पोजिशन ऑप्ट करनी थी बाय फाइलिंग फॉर्म GST CMP 02. बट बिकॉज ऑफ दिस COVID-19 नोटिफिकेशन 30/2020 says अगर आप ये नहीं भी कर पाते इंटीमेशन फाइल CMP 02, you can do it up to the extended period of 36. और GST ITC 3 साथ ही भरना था क्योंकि उसको अपना क्रेडिट फिनिश करना होता है, लैप्स करना होता है या पे एन अमाउंट इक्वल टू करना होता है. तो उस पर्सन की स्टॉक की डिटेल्स वैसे जाती है 60 डेज के अंदर, यानी जानी थी मई एंड तक जानी थी. बट अब मैं ऑप्ट 30th तक कर सकती हूँ, तो गवर्नमेंट ने ITC 03 का टाइम पीरियड भी बढ़ा के कर दिया 31 जुलाई 2020, यानी GST ITC 03 भर सकते 2020 तक. एक बात याद रखिएगा, इस पर्सन ने कॉम्पोजिशन में अब ऑप्ट करना है, इसका मतलब वो पहले रेगुलर में होगा, राइट, या न्यू एसएससी होगा. न्यू एसएससी है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, नई रजिस्ट्रेशन आपने अप्लाई करनी है, यू कैन अप्लाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आल्सो, और उसमें आप कॉम्पोजिशन के ऑप्शन टिक कर सकते हैं. बट अब अगर वो पिछले साल रेगुलर में था, अब कॉम्पोजिशन में आना चाहता था, एज वन ऑफ माय क्लाइंट केम टू मी एंड सेड आई वांट टू कम इनटू कॉम्पोजिशन नाउ, उसको पहले 3 महीने अगर वो CMP 02 नहीं भर रहा तो उसको अपनी रेगुलर रिटर्न फाइल नहीं करनी है. रेगुलर रिटर्न फाइल कर दी तो CMP 02 की ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगी.
सो ध्यान रखिएगा, अगर आपका कोई भी पर्सन जो इस बारी कॉम्पोजिशन में आना चाहता है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं. I don't see you cannot apply. You can still apply, but the time period has been extended up to 30th/6 and for ITC 03 up to 31/7. ये दोनों थे जब कोई नया पर्सन कॉम्पोजिशन में आना चाहता है. What about those persons who are already into composition या जिन्होंने अप्लाई कर दी, उन्होंने रिटर्न भरनी है, राइट? रिटर्न आपको पता है क्वार्टरली जाती है CMP 08 में अब, और एक एनुअल जाती है GSTR 4 में. और इस पीरियड में यानी मार्च 20 से लेकर 30 जून तक क्वार्टर एंड हो रहा है मार्च 2020. सो कौन सी डेट एक्सटेंड की? मार्च 2020 की क्वार्टर एंडिंग की डेट एक्सटेंड करके जो वैसे जानी थी 18 अप्रैल तक कर दी गई 7 जुलाई. देखिए सीक्वेंस ऑफ डेट्स, 30/6 तक अप्लाई कर सकते हो, 31/7 तक ITC 03 भर सकते हैं और रिटर्न 7 जुलाई तक आप भर सकते हैं 30/6 को ऑप्ट करने के बाद. और GSTR 4 जिसकी ड्यू डेट 30 अप्रैल थी एक्सटेंड करके 15 जुलाई कर दी गई है. आई हैव मेंशन्ड द रेलेवेंट नोटिफिकेशन इन द लास्ट कॉलम सो दैट वी कैन चेक दैट from where this provision has been taken from. So this was about the composition dealer. Coming next, ये नोटिफिकेशन कॉम्पोजिशन के बाद मैं साथ ही डील कर रही हूँ बिकॉज हेयर वी रेफर टू नोटिफिकेशन 30/2020. 30/2020 ने एक प्रोविजन इंसर्ट किया एंड इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ भी करेंगे. आपको पता है रूल 36(4) ने कैपिंग लगा दी थी. 1 जनवरी 2020 से ये कैपिंग 10% हो गई थी जो ओरिजिनली 20% थी. इसने कैपिंग लगा दी, जितना आपके 2A में क्रेडिट आएगा एलिजिबल क्रेडिट उसका 110% कर दीजिएगा और 110% से ज्यादा आप क्रेडिट नहीं ले पाएंगे अपने 3B में. बट एक बात देखिए, ऑल द डेट्स हैव बीन एक्सटेंडेड. पर्सन माइट और माइट नॉट बी फाइलिंग देयर रिटर्न्स. हो सकता है मैंने फाइल की, एक्स ने फाइल की, वाई ने फाइल की, जेड ABC फाइल ना करें. सो इस चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने कहा मंथ वाइज 36(4) फॉर द पीरियड February to August 2020 आपको लगाने की जरूरत रूल 36(4) की नहीं है. यानी आपको 2A में नहीं देखना आपका कितना क्रेडिट आ रहा है, उसका 110% करके लेने की जरूरत नहीं है. आपके अकॉर्डिंग जो आपका एलिजिबल क्रेडिट बनता है वो ले लीजिए. बट ये नहीं है, प्रोविजन हमेशा के लिए रिलैक्स कर दिया उन्होंने. कहा इकट्ठा लगा देना सितंबर मंथ में. अब देखते हैं. Let me tell you one thing. Notification में procedure of calculation is not given, but here I have derived it a bit with this example and this point. So let's see what it says. ये कहता है आप क्या करोगे सितंबर मंथ में जाके 2A क्यूमुलेटिव डाउनलोड करोगे. नोटिफिकेशन सेज फेब से अगस्त तक का कर लीजिएगा. 2 मिनट लूंगी आपके. फेब से अगस्त तक का कर लीजिएगा. ओके, वी आर प्रोसीडिंग एज पर द नोटिफिकेशन. फेब से अगस्त तक का मैं क्यूमुलेटिव सी अगेन इसमें मैं वुड लाइक टू मेंशन द नोटिफिकेशन डज नॉट स्पेसिफाई द डेट ऑफ पुलिंग आउट ऑफ 2A. दिस एरिया हैज बीन लेफ्ट ओपन. कौन सी डेट को 2A निकालना है. बट अगर गवर्नमेंट ने सितंबर तक एक्सटेंड की है और मेरे क्रेडिट्स पहले नहीं आ रहे होंगे बिकॉज पर्संस हैव नॉट फाइल्ड द रिटर्न, तो मैं सितंबर मंथ में जब वो 2A डाउनलोड करूंगी क्यूमुलेटिव बुक्स के अकॉर्डिंग, मैंने तो अपनी मर्जी से B क्रेडिट लिया होगा. 3B में ऑफ कोर्स जो मेरा बुक्स का क्रेडिट था मैंने वही उठा लिया होगा. B और C मेरे जनरली बराबर ही होंगे. अब A में क्रेडिट आ गया, उसका 110% क्यूमुलेटिव कंडीशन लगा रही हूं मैं, 110% किया और देखा भाई D के अकॉर्डिंग इतना अमाउंट बनता था, मैंने अपनी रिटर्न 3B में C ले लिया. शॉर्ट लेगा मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि कुछ हमारे वेंडर्स होंगे जो क्वार्टरली बेसिस पे होंगे. अब सितंबर का अपना मंथ भी ऐसे करेंगे बट सितंबर में एक्सेस आ सकता है क्योंकि कुछ मेरे वेंडर्स जो हैं उन्होंने अपनी रिटर्न फाइल कर दी होगी. सो अल्टीमेटली व्हाट आई विल डू, फेब से सितंबर तक का हम एक क्यूमुलेटिव अपना डाउनलोड करेंगे और जो भी पेबल निकलेगा उसको सितंबर मंथ की 3B में एडजस्ट करेंगे. लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस क्लॉज विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल. फेब मंथ में मेरा बुक्स का ITC था 2000 रुपीज. 2A में आ रहा था 1600 रुपए. अब ऐसे करते करते अब मुझे बताइए, मैंने तो पहले फेब मंथ की जब मैंने 3B भरनी है, मुझे तो 2A का क्रेडिट देखना ही नहीं है. तो व्हाट आई विल डू, 2000 मेरी बुक्स का मैं वो ले लूंगी,
3000 मेरी बुक्स का है, आई कैन टेक दैट. 2400 मेरी बुक्स का है, आई कैन टेक दैट. तो इन दिस वे जो मेरी बुक्स का क्रेडिट होगा अगस्त तक का 3B में मैंने वही लिया होगा. और सितंबर का देखिए क्या लेंगे 3B में. अगर मैं नीचे वर्किंग पे आऊं, मैंने क्या कहा था, अब हम फेब से सितंबर टोटल कर लेंगे. आप देखिए फेब से सितंबर 14,400 बन रहा है. इसका 110% कर दीजिए. 36.4 यही कहता है ना, क्यूमुलेटिव लेना है अब एज पर द नोटिफिकेशन. उसका 110% कर दीजिए, यानी 15,840 में ले सकती थी. लेकिन मैंने कितना ले चुकी हूं? I have taken as per books 17,400 मैं ले चुकी हूँ as per books. इसका मतलब मैंने कितना एक्सेस ले लिया? 1,560 रुपीज मैंने एक्सेस ले ली. जब मैं सितंबर की 3B भरने जाऊंगी, मेरा बुक्स का क्रेडिट है 2,800 रुपए. मैं उसमें से 1,560 जो मैं एक्सेस ले चुकी हूँ वो मैं माइनस करके 1,240 ही लूंगी. So this rule 36 for implication cumulatively be like this. यानी मेरा सितंबर मंथ का, तो इसलिए एक चीज ध्यान रखिएगा, आपकी एक लिमिटेशन है क्योंकि आपके 2A में क्रेडिट्स आ ही नहीं रहे होंगे. लोगों ने रिटर्न्स नहीं फाइल करी या नहीं कर पा रहे, आप अपनी बुक्स का उठा रहे हो. बट सितंबर में आपका इनपुट कंसिडरेबली डिक्रीज हो जाएगा. आप देखिए कहां मैंने 2,800 लेना था, मैं 2A का 3,000 नहीं लूंगी क्योंकि हम तो वही क्रेडिट लेते हैं जिसके लिए जो 2A इज नॉट कंसिडर टू बी अ डॉक्यूमेंट जो मुझे क्रेडिट दिलवाएगा. मेरी बुक्स का क्रेडिट 2,800 था और मैं सारे क्लॉजेस में एज पर बुक्स ही ले रही हूँ जो मेरा एज पर 800 था. बट क्योंकि मैं पिछले महीनों में ज्यादा ले चुकी हूँ, 1,560 रुपए मुझे वो एडजस्ट करने पड़ेंगे और मैं क्रेडिट ले पाऊंगी सिर्फ 1,240 रुपीज का. एनी इशू इन दिस एग्जाम्पल? सर कर्फ्यू एक्सटेंड हो गया है, पता लग गया है. इसमें कोई एग्जाम्पल में या रूल 36(4) में कोई इशू हो तो एनी मेंबर इज मोस्ट वेलकम. I think so. With this example is clear to everyone that how this cumulative rule will apply. But let me tell you, this cumulative rule and working is not there in the notification, for which a clarification has been sought for government to provide the procedure. But we have tried to develop this example so that the at present impact of rule 36(4) can be explained. Deferment of 36(4) can be explained, right? सर ये 36(4) एक्सटेंड तो की है, बट इसके कितने प्रोस एंड कॉन्स आएंगे? एंड ऑल्दो इट वाज द नीड ऑफ द R2 बिकॉज 2A में क्रेडिट्स रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, बट ये कितनी देर तक सस्पेंड होना चाहिए था? या सीइंग द रूल 36(4) दैट इज नॉट प्रॉपरली जस्टिफाइड बिकॉज डेफरमेंट हुई है, सस्पेंशन नहीं हुई है. राइट नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नोटिफिकेशंस. अभी हमने पहले कॉम्पोजिशन डीलर को डील किया था, हमने उसकी रिटर्न्स, उसका आना, उसका ITC 03 भरना, उस सब के बारे में बात की थी. अब हम नॉर्मल टैक्स पेयर के बारे में बात करते हैं जिसने 3B भरनी है, GSTR 1 भरनी है. नॉर्मली हमारे एसएससीज 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, 5 करोड़ से ऊपर, 5 करोड़ से नीचे. 5 करोड़ से ऊपर वाले वो जिन्होंने अपनी भरनी है 20 तारीख तक 3B, और 5 करोड़ से नीचे डिवाइडेड एज पर स्टेट 22 और 24. पंजाब फॉल्स अंडर 24th डे. लेकिन स्टैगर्ड मैनर में डेट्स रखने के लिए ताकि इनकी साइट क्रैश ना हो पाए, द डिपार्टमेंट हैज टेकन दिस प्रेरोगेटिव. They have divided now the 3B for the COVID-19 period. The limits, 3 limits have been kept. 5 करोड़ से ऊपर, 1.5 करोड़ से 5 करोड़ और 1.5 करोड़ से नीचे. आप देखोगे 1.5 करोड़ से नीचे और 5 करोड़ तक वालों के लिए इंटरेस्ट और पेनल्टी के प्रोविजन बिल्कुल सेम है, सिर्फ डेट्स अलग की गई हैं. किसी की जुलाई में है और किसी की जून में रखी गई. वेयर एज वो एसएससीज जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में. नाउ ये बात ध्यान रख लीजिएगा, फाइनेंशियल ईयर पिछले फाइनल नहीं हुए हैं,
तो जब ये ना हो कि एसएससी पहले तो लेस देन 5 करोड़ में था और जब बुक्स फाइनल हो तो वो मोर देन 5 करोड़ में चला जाए. So this issue is also to be addressed because they have kept it as the preceding financial year, which has not yet been finalized. Now, coming towards this, no date of 3B has been extended. कोई डेट एक्सटेंड नहीं हुई है. गवर्नमेंट ने ड्यू डेट वही रखी है जो थी. 20 मार्च से ये लॉकडाउन एंड एवरीथिंग, दिस एंटायर कोविड-19 स्टार्टेड. तो गवर्नमेंट ने कहा 20/3 से जो रिटर्नों की ड्यू डेट थी, कौन सा मंथ पहला फॉल कर रहा था? फेब 2020. फेब और 30 जून तक जिनकी डेट्स आएंगी, यानी फेब, मार्च, अप्रैल. मैं मई पे अभी नहीं आ रही हूँ. मई को मैंने इंक्लूड जरूर किया है, लेकिन उसकी नोटिफिकेशन कोविड-19 के नोटिफिकेशन से बाहर है. 36 नंबर है. तो 3 महीने फेब, मार्च और अप्रैल में गवर्नमेंट ने कोविड-19 की वजह से बेनिफिट दिया और कहा एक कट ऑफ डेट देते हैं. ड्यू डेट इज नॉट एक्सटेंडेड. 20/3, 20/4, 20/5 ड्यू डेट्स आर एज इट इज. लेकिन हम अब जब हम ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल नहीं करते तो क्या लगता है? इंटरेस्ट या पेनल्टी लगती है, लेट फी लगती है, राइट? तो उन्होंने ये बेनिफिट दिया, अगर आप 5 करोड़ से ऊपर वाले एसएससी हो, बिकॉज यू आर अ बिग एसएससी, ड्यू डेट जो 20/3 थी उससे 15 दिन और जोड़ लो, यानी पहले फेब मंथ के एक्सपायर होंगे 4/4/2020, मार्च मंथ के एक्सपायर होंगे 5 मई 2020, अप्रैल के एक्सटेंड होंगे 4 जून 2020. अगर आप 15 दिन के अंदर अंदर अपनी रिटर्न भर दोगे, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा और लेट फी तो सब केसेस में ही वेव कर दी गई है. तो मैं लेट फी को बार बार रेफर नहीं करूंगी. अगर आप अपनी रिटर्न 5 करोड़ से ऊपर वाला एसएससी 15 दिन में फाइल कर देगा तो इंटरेस्ट नहीं चार्ज होगा और उसके बाद भी 9% के हिसाब से चार्ज होगा, वो भी डेज के अकॉर्डिंग, एज पर द डेज. अगर रिटर्न फाइल कर दोगे कट ऑफ डेट तक. कट ऑफ डेट है 24/6/2020. लेकिन अगर आप 24/6/2020 के बाद चले गए तो रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट का नो बेनिफिट, 18% पूरा भरना पड़ेगा और 15 दिन के पहले 15 दिन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा. लेट फी भी तब तक वेव्ड रहेगी अगर आप रिटर्न 24/6 तक भर देते हैं. लेट्स take it with a practical example. This example is itself given in the circular 136. ये कहता है 2/5 तक रिटर्न भरी, 11 दिन का डिले था, अभी तो 15 दिन के अंदर ही है, कोई इंटरेस्ट नहीं लगना. 30 डेज का हो गया, 20/5 ड्यू डेट थी 20/4, तो कितने दिन का लगेगा? 15 दिन का इंटरेस्ट लग जाएगा, वो भी 9% के हिसाब से. 20/6 तक कर दी, 61 डेज का डिफॉल्ट हो गया. पहले 15 दिन इंटरेस्ट नहीं लगना, फिर 46 डेज का 9% के अकॉर्डिंग. 24/6 तक एग्जैक्ट कट ऑफ डेट पे भर दी 24/6, तो भी पहले 15 दिन नो इंटरेस्ट, उसके बाद 9% फॉर 50 डेज. लेकिन अगर आप कट ऑफ डेट 24/6 को एक्सीड कर गए 30/6, पूरे 71 डेज का इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%. नाउ कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ हमारे जैसे शैतानी दिमाग. अ पर्सन सेड मैं नील की रिटर्न फाइल कर देता हूँ. रिटर्न फाइल कर दी ना 24/6 तक, बाद में या नील की कर देता हूँ या कुछ सेल दिखा के कर देता हूँ, बाद में अगले महीने में आफ्टर 24 से जो टैक्स होगा बैलेंस शो कर दूंगा. सो दिस इशू हैज नॉट बीन एड्रेस्ड, बट द क्लैरिफिकेशन इज सीक्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट ये उसी पीरियड के बेनिफिट मिलना चाहिए जो सेल्स डिक्लेयर कर दी गई इन द रिटर्न ऑफ अप टू 24/6/2020. सो एक एसएससी जिसकी 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है, भाई 24/6 तक भर दोगे सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, और अगर पहले 15 दिन में भर दोगे तो इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा और उसके बाद रिड्यूस रेट लगेगा 9%. फेब, मार्च एंड अप्रैल सिर्फ 3 मंथ कोविड के कारण कवर्ड है. मई की ड्यू डेट एक्सटेंड की गई है, नो रिलीफ ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन गिवन. डेट एक्सटेंशन हुई है टू इसलिए कि स्टैगर्ड मैनर में रखा जाए और हॉच पॉच ऑफ डेट्स ना हो पाए. 27/6 को डेट एक्सटेंड कर दिया. 27/6 तक करोगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई लेट फी नहीं, बट अगर 27/6 के बाद करोगे तो पूरा 18% इंटरेस्ट लगेगा. सो जो पहला आया था वो इंटरेस्ट की एग्जम्पशन नोटिफिकेशन आई, नहीं लेंगे इंटरेस्ट, नहीं लेंगे लेट फी.
डेट एक्सटेंड नहीं हुई, लेकिन मई 2020 की उन्होंने डेट एक्सटेंड कर दी। नाउ दिस वाज होल फॉर दोस पर्संस जो 5 करोड़ से ऊपर हैं। अब जो 5 करोड़ से नीचे है, अप टू, चाहे वो 1.5 करोड़ वाले हैं या 1.5 करोड़ से भी नीचे है, फर्क सिर्फ डेट का है। प्रोविजंस आर एब्सोल्युटली सेम। कट ऑफ डेट रखी गई है फेब, मार्च, अप्रैल के लिए। फेब और मार्च के लिए 29/6 और अप्रैल के लिए 30/6। तब तक रिटर्न में फाइल कर दोगे, नो इंटरेस्ट, नो लेट फी, ना रिड्यूस्ड इंटरेस्ट की बात है, ना ही 15 दिन की बात है, लेंगे ही नहीं। पर 30/6 के बाद जाओगे या 29/6 के बाद जाओगे तो शुरू से लग जाएगा। आपको पता है गवर्नमेंट ने ब्लैंकेट एग्जेम्पशन दी है हमें जीएसटी में बाय इंट्रोड्यूसिंग सेक्शन 168A। अभी हम आगे डील करेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली सेक्शन 50 ऑफ इंटरेस्ट एंड 47 ऑफ लेट फी बाहर रखा है। इसीलिए रखा है, गवर्नमेंट हमसे इस पीरियड का भी इंटरेस्ट और लेट फी ले सकती है अगर हम कट ऑफ डेट तक रिटर्न फाइल नहीं करते। सो इंटरेस्ट और लेट फी वेवर नहीं है अगर कट ऑफ डेट के बाद हम जाएंगे। बट मई की अगेन ड्यू डेट 12 और 14 करी गई है। 12 भी वही एज पर स्टेट्स, डेट एक्सटेंड करी गई है। 12 और 14 जो एक्चुअली थी 22/6 और 24/6, उसको जुलाई में लेके जाया गया है। और अगर तब तक फाइल कर देंगे तो ओके है, नहीं तो इंटरेस्ट लग जाएगा एट द रेट 18% और लेट फी भी एप्लीकेबल हो जाएगी। लास्ट कैटेगरी इज 1.5 करोड़ की, जिनकी प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एब्सोल्युटली सेम, नो इंटरेस्ट, नो लेट फी अगर कट ऑफ डेट तक, और कट ऑफ डेट आपके सामने है, फेब की 30/6, मार्च की 3/7, अप्रैल की 6/7 और मई की डेट एक्सटेंड हुई है, उसमें कट ऑफ डेट नहीं है 12/7 और 14/7। राइट, अब हमने 3B की बात कर ली। 3 कैटेगरीज में गवर्नमेंट ने डिवाइड किया था, तीनों कैटेगरीज भी डील फॉर कर ली। व्हाट अबाउट GSTR1? No date of GSTR1 has been extended. Date is absolutely same 30/6/2020, but इंटरेस्ट तो पहले ही नहीं लगता था GSTR1 पे, कह दिया लेट फी भी नहीं लेंगे अगर 30/6 की कट ऑफ तक भर दोगे। Could you notice one thing? जब हम 3B देख रहे थे तो मंथ थे फेब, मार्च, अप्रैल। मैं एक को छोड़ रही हूँ बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इज नॉट कवर्ड ड्यू टू कोविड। फेब, मार्च, अप्रैल। लेकिन जब GSTR1 आई तो मंथ्स हो गए मार्च, अप्रैल, मई। रीजन, अरे फेब GSTR1 की डेट तो 11 तारीख ऑलरेडी निकल चुकी थी। मैंने कहा वो ड्यू डेट जो 20 मार्च से शुरू हुई है और 29/6 तक जाएंगी। सो एज अ रिजल्ट मार्च, अप्रैल, मई की due dates of GSTR1 has not been extended, but the late fee has been waived if the return is filed up to the cut off date. कोई लिमिट नहीं है। इसी एडमिस्ट क्वार्टरली रिटर्न भी आ रही थी 5 करोड़ से, जो हमारे असेसिस 1.5 करोड़ से नीचे के हैं, और उनकी क्वार्टरली के लिए उन्होंने कहा कि भाई अगर आप क्वार्टरली GSTR1 भरते हैं 5 करोड़ से बिलो हैं तो इन दैट केस आपको आपकी ड्यू डेट जो है 30/6 कर गई, और क्वार्टर जो फॉल कर रहा है दैट इज मार्च 2020। राइट, सो ये GSTR1 की डेट एक्सटेंड नहीं की गई, कट ऑफ दिया गया। अगेन कमिंग टू माय पॉइंट, दिस इज ओनली अ कट ऑफ डेट दैट हैज बीन प्रोवाइडेड, द डेट्स आर एब्सोल्युटली द सेम। If you file GSTR1 beyond the cutoff dates, the due date will be the same and late fee will be charged. Now, coming towards the last point of this COVID-19 issue, actually 168A एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया। अगर आप नोटिफिकेशन 35/2020 के स्टार्टिंग में पढ़ेंगे ना, as per powers conferred by section 168A, ये सेक्शन लाया गया है थ्रू अ स्पेशल ऑर्डिनेंस। एज यू नो, एक्ट अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट का बैठना जरूरी है, बट एज द पार्लियामेंट वाज नॉट सिटिंग, 168A हैज बीन ब्रॉट थ्रू अ ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी 6 महीने होती है। जब भी पार्लियामेंट सिट करेगी वो 6 मंथ तक इसको अडॉप्ट करेगी और ये सेक्शन वैलिड हो जाएगा। ये क्यों इंसर्ट किया गया? एक जर्नल ब्लैंकेट एक्सटेंशन देने के लिए पावर दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ड्यू टू force majeure clause. What is force majeure clause? Due to natural calamities, war, pandemic, epidemic. I should say epidemic, not pandemic.
एपिडेमिक की वजह से गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हें पावर दी जाती है कि तुम एक ब्लैंकेट एक्सटेंशन दे सकते हो ड्यू टू कोविड-19, बट इसमें भी क्लॉज है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। अब लगता तो ये है कि भाई काउंसिल की रिकमेंडेशन प्री हैंड होनी चाहिए, but now as the council is not sitting, but in 168A itself the condition of recommendation of council has been inserted, and against this section notification 35 by 2020 due to covid impact कहती है सारी compliances, उन्होंने compliances को दो हिस्सों में डिवाइड किया, if you can see it in the screen in front of you, डिपार्टमेंट के लिए भी और एसएससी के एक्शन के लिए भी। सारे पीरियड जो कि 29/6 तक फॉल करते थे, 20 मार्च से लेकर 29/6 तक फॉल करती थी, जिनकी ड्यू डेट सारे जो है वो आगे एक्सटेंड कर दिए गए हैं टू 30/6/2020। क्या डिपार्टमेंट तुमने कोई प्रोसीडिंग खत्म करनी थी, ऑर्डर पास करना था, इश्यू करनी थी, नोटिफिकेशन, एनीथिंग, या एसएससी ने कोई रिप्लाई देना था, अपील देनी थी, कर दिए गए हैं। लेकिन कुछ पॉइंट्स को लाइव रखा गया है, एक्सेप्शन, यानी उनकी डेट एक्सटेंड नहीं। आपको पता है अभी भी नंबर अप्लाई हो रहे हैं, अभी भी रिफंड अप्लाई हो रहे हैं। डिपार्टमेंट ने अराउंड 18,000 एप्लीकेशंस अभी भी ड्यूरिंग दिस कोविड-19 लॉकडाउन पीरियड जो रजिस्ट्रेशन किए वो प्रोसेस किए हैं। वीपीएन के थ्रू उनको चार्ज दिए गए हैं, दे कैन डू दिस, और सीजीएसटी डिपार्टमेंट में तो खासकर ये हो रहा है। इन एप्लीकेशंस के रेगुलरली हमें रिवर्ट आ रहे हैं, नंबर्स अलॉट किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस वजह से if you can see section 25 application for registration is an exception, इसका टाइम पीरियड एक्सटेंड नहीं हुआ है। तो भाई साहब अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है तो ये मत सोचेगा टाइम पीरियड एक्सटेंड हो गया, यू मस्ट अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन। अगर आप इस पीरियड में गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, आपको गुड्स टैक्स इनवॉइस के साथ ही डिस्पैच करने हैं, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। उनका ईवे बिल भी करना है, आगे जाके हम देखेंगे ईवे बिल की भी रिलैक्सेशन नहीं है। अभी मैं एक्सटेंशन ऑफ पीरियड के लिए आऊंगी, बट रिलैक्सेशन नहीं है, ईवे बिल करना है। अगर आप कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और आपकी लिमिट अगर आपकी रजिस्ट्रेशन होनी है, रजिस्ट्रेशन किसी की भी होनी है, नॉर्मल पर्सन की सेक्शन 22 में, 24 में, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन की, सबके टाइम पीरियड ओपन है, यानी ये एक्सेप्शंस हैं। आपको मैंने पहले ही कहा था लेट फी ओपन रखी है, सिर्फ वेवर दिया है ड्यू डेट तक। सेक्शन 47, इंटरेस्ट का सेक्शन 50, ऑल आर एप्लीकेबल। डिपार्टमेंट ने अगर नोटिस इशू करने हैं, पावर ऑफ अरेस्ट, पेनल्टी प्रोविजन, डिटेंशन एंड सीजर प्रोविजंस ऑफ कन्विक्ट, all are applicable. And furnishing of return, as I have already told you time and time, section 39 के अंदर ड्यू डेट्स एक्सटेंड नहीं हुई है, रिटर्न्स के टाइम पीरियड सेम रखे गए हैं सिवाय 3 के, टीडीएस रिटर्न फाइलर्स, आईएसडी फाइलर्स और कैजुअल पर्संस। इनके टाइम पीरियड 30/6 तक किए गए हैं, बाकी सबके टाइम पीरियड जो है are limited to are the same, यानी वो ड्यू डेट्स एज इट इज फ्लो करेंगी। इस पे टीसीएस कवर्ड नहीं, लेकिन जो गवर्नमेंट ने सर्कुलर इशू किया ना उसमें टीसीएस मेंशन्ड है। कैसे मेंशन्ड है कि टीसीएस की जो स्टेटमेंट जानी है सेक्शन 52 के अंदर जाती है वो, और आप देखो सेक्शन 52 एक्सेप्शंस में नहीं है, क्योंकि सेक्शन 52 एक्सेप्शन में नहीं है यानी वो जर्नल ब्लैंकेट एग्जेम्पशन में कवर्ड है और उसकी भी हमें टीसीएस की रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक चेंज जो आया, कई लोगों की मुझे कॉल्स आई, हमने ईवे बिल बना के रखा हुआ था, माल डिस्पैच होना था, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि लॉकडाउन हो गया। तो उन्होंने कहा अगर आपका कोई भी ईवे बिल 20 मार्च से 30 अप्रैल तक 15 अप्रैल तक वैलिड था तो उसको हम एक्सटेंड करके उसकी वैलिडिटी 30 अप्रैल कर देते हैं, राइट। सो अगर आपकी जो ईवे बिल इस पीरियड में एक्सपायर हो रहे थे उनका टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है। मैंने आपको नहीं बता दिया, टीसीएस वालों के लिए जो डेट है 30 जून हो गई है, कवर्ड बाय द ब्लैंकेट एग्जेम्पशन, राइट, एंड द टैक्स पेयर दिस ऑलरेडी हैज बीन टेकन। सो नोटिफिकेशन 35/2020 से गवर्नमेंट ने 168 से पावर लेके एक ब्लैंकेट एग्जेम्पशन दी है, जैसे एलयूटी। This was a time when we were to apply for the LUTs, but covered by the journal blanket exemption, the time period will be extended to
30/6/2020. With this, all the impacts of notification due to COVID-19 are covered. Notification 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 along with circular 136. अब जिसके साथ कवर करना चाहूंगी, मैं 43 रूल को डायरेक्टली टेकअप करूंगी विद एन एग्जांपल, बट उससे पहले जस्ट 5 मिनट्स जो छोटी छोटी नोटिफिकेशंस आई हैं, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस. नोटिफिकेशन 10 से शुरू हुए हैं, हम 10 से लेकर 29 तक आई थी. 10 हमारे दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव से रिलेटेड है, नहीं लूंगी. नोटिफिकेशन नंबर 11 कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए आई थी. एंड यू नो, इसका एक प्रॉपर सर्कुलर भी गवर्नमेंट ने इश्यू किया है, सर्कुलर नंबर 133 आई गेस, 33 और 134. सो उसके ऊपर कंप्लीट उन्होंने बताया कि नई रजिस्ट्रेशन लेनी है, आईटीसी पुरानी रजिस्ट्रेशन का नई रजिस्ट्रेशन में शिफ्ट होगा. द प्रोसीजर हैज बीन गिवन इन इट. नाउ नोटिफिकेशन 12 कॉम्पोजिशन डीलर. एक्चुअली क्या हुआ था, जो नोटिफिकेशन 2/2019 आई थी ना, जिसमें सर्विस प्रोवाइडर्स भी कॉम्पोजिशन में जा सकते थे, उसकी ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी. तो जिस वजह से कुछ लोग ऑप्ट नहीं कर पाए थे और उन्होंने रेगुलर रिटर्न नहीं भर दी थी. तो उन्होंने वेवर दिया था कि अगर आपने भर दी है तो आपको 3 भी भर दिया है तो आपको GSTR 1 भरने की जरूरत नहीं है. एंड एज यू ऑल नो, e-invoicing and the QR code requirements have been deferred to 1st October 2020 and it might be further extended due to COVID-19 impact. And few sectors, banking, मूवी टिकट्स वालों ने, सिनेमेटोग्राफी, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वालों ने, GTA वालों ने कहा था इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू गिव अ ई-इनवॉइस और गो फॉर QR कोडिंग. तो इन दोनों को एग्जेम्प्ट कर दिया गया था कि आपको या ई-इनवॉइसिंग या फिर QR कोड करने की जरूरत नहीं है. अपार्ट फ्रॉम इट, द टाइम, दिस आई हैव ऑलरेडी कवर्ड कि टाइम लिमिट एक्सटेंड हो गई है. और 18 नोटिफिकेशन मैंने पहले ही डील कर लिया है. इंडिविजुअल के केस में आधार आइडेंटिफिकेशन इंडिविजुअल की होगी, बाकी सबके केस में, पार्टनर्स के केस में पार्टनर्स की, पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स की होगी, कर्ता के केस में HF की होगी और कंपनी के केस में ऑथराइज्ड सिग्नेटरी की होगी. और इसकी डेट 1/4/2020 कर दी गई है. जो लोग, नोटिफिकेशन 19 कहती है, जो लोग सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, other than the individuals who shall undergo the authentication to be eligible, वो नोटिफाई किए गए हैं. इसमें जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है उनको आधार ऑथेंटिकेशन कराने की जरूरत नहीं है. Apart from these are the date notifications which I have included, but you can go through that yourself. Which the main issue I want to cover is Rule 43. Are we all ready for this Rule 43? Because Rule 43 में नोटिफिकेशन 16/2020 ने मेजर चेंज किया है और Rule 43 में इतनी गलतियां थी जिससे कि मेरे रिवर्सल इम्पैक्ट भी गलत आते थे. Rule 43 को अमेंड किया गया, नॉर्मली इसको क्लियर किया और Rule 43 बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होता है. वी थिंक इट माइट नॉट बी, बट एज वी आर ऑल डीलिंग विद राइज इंडस्ट्री एंड वी आर, और खासकर एग्जाम सप्लाईज तो ऑलमोस्ट हर जगह आ ही जाती हैं और कैपिटल गुड्स परचेज करके उनका क्रेडिट भी लिया होता है. सो vis-a-vis my knowledge is concerned, Rule 43 has a wide applicability और इसमें बहुत वेलकमिंग चेंज आए हैं. बट देयर इज सम ड्राफ्टिंग एरर इन Rule 43. अमेंडमेंट में ड्राफ्टिंग एरर भी है. देखते हैं हाउ दिस रूल इज चेंज्ड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. सो I hope all are ready to go for it. Yeah. Sir, in the chat box, I can see a few issues regarding interest will be charged on output or net. Sir, itself is an issue we'll be taking up because अब तो जैसे प्रेस रिलीज भी आ गई थी और उन्होंने कहा था कि हम सेक्शन 50 को रेट्रोस्पेक्टिवली लगा देंगे. तो इट इज वेरी वेलकमिंग मूव जिसमें कि इंटरेस्ट जो है वो अब नॉट इवन नेट, आई शुड से कैश कंपोनेंट पे लगना चाहिए. सो जितने का आपने चालान पे किया होगा उस पे लगना चाहिए.
सो कंसिडरिंग दैट नोटिफिकेशन, ऑल्दो गवर्नमेंट की अपनी ट्वीट्स जो थी और अपने जो इंटरनल इश्यूज थे, सर्कुलर्स थे, वो इससे कॉन्ट्राडिक्टरी थे, बट दिस हैज बीन अ बेनिफिट एक्सटेंडेड एंड वी विल बी टेकिंग द बेनिफिट ऑफ दिस। हमने पहले भी इसको अपोज किया था और नहीं लिया था, नेट पे ही हमने डिपार्टमेंट को कहा था कि वी विल बी पेइंग, ऑल्दो गवर्नमेंट ने पहले 44,000 करोड़ के नोटिसेस इशू कर दिए एंड नाउ दे आर सेइंग कि वी विल बी अप्लाइंग दिस प्रोवाइजो retrospectively from the 1 July 2017, from the concerned date rather I should say. Let's see what the retrospective date comes. So let's have a look on this rule 43. I hope we all are ready. Yeah. सर रूल 43 में मैं कंट्रास्ट करके बताऊंगी ओल्ड और नए रूल में फर्क क्या था। एग्जांपल लेके चलते हैं। मेरे एक कैपिटल गुड्स थे, एक सेकेंड, आई कैन नॉट सी द स्क्रीन, ओके। कैपिटल गुड्स थी, मेरी मशीनरी थी, मैंने 10/7/2017 को परचेज की, इनवॉइस भी आ गया जिसके ऊपर आईजीएसटी लगा हुआ था 6 लाख रुपए। आईजीएसटी अमाउंट था, इनवॉइस के ऊपर 6 लाख का, नॉट द मशीनरी। दिसंबर 2017 तक मैं उसको आराम से यूज कर रही थी एग्जाम सप्लाई के लिए, तो इसका मतलब मैंने 6 लाख का क्रेडिट नहीं लिया होगा क्योंकि ये यूज हो रही थी एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए। लेकिन जनवरी 2018 के बाद मेरा प्रोडक्ट कुछ टैक्सेबल हो गया और कुछ एग्जाम्प्ट रह गया। ऐसे ले लेते हैं, मैंने राइस ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों शुरू कर दिए। पहले मैं सिर्फ नॉन ब्रांडेड में थी, एग्जाम सप्लाईज थी, अब मेरा ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों, यानी द मशीनरी इज पुट टू यूज फॉर टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट सप्लाईज। कमिंग टुवर्ड्स इट, टर्नओवर टाइप, एग्जाम सप्लाई मैंने जनवरी में की 4 करोड़ की और टोटल की 10 करोड़ की। रेशियो निकालने के काम आएगा क्योंकि दिसंबर 2017 तक जब मैंने एसेट मैंने परचेज किया 2 क्वार्टर एंडिंग सितंबर, क्वार्टर एंडिंग दिसंबर, I used 2 quarters for exempt। तो रूल कहता है, रूल 43, जो 2 क्वार्टर आपने एग्जेम्प्ट यूज किए हैं 5% फॉर ईच क्वार्टर खत्म कर दीजिए क्योंकि उस पीरियड में एग्जाम्प्ट यूज किया। 5% 2 क्वार्टर यानी 10%, 6 लाख का 10% बना 60,000 रुपीज, 60,000 रुपए आप समझ लीजिए आपका आईटीसी खत्म हो गया। 5,40,000 दिसंबर 2017 के एंड में बचा क्योंकि अब आप मशीनरी कॉमन यूज कर रहे हैं तो आप रूल 43(1)(c) में आ जाएंगे। रूल 43(1)(c) में आ जाएंगे। मैं आपको बता दूं, रूल 43(1)(c) के 4 पार्ट्स हैं मेन। क्लॉज ए जो सिर्फ एग्जम्प्ट को डील करता है, क्लॉज बी जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल को डील करता है, वो मशीनरी जो कॉमन के लिए यूज होती है वो क्लॉज सी में है। तो वो कहता आप पहले किस में थे, आप पहले थे क्लॉज ए में एग्जेम्प्ट में, अब आप आ गए हो क्लॉज सी में यानी कॉमनली यूज्ड गुड्स के लिए। कमिंग बैक टू द एग्जांपल, क्या कह रहे हैं, आपने पहले तो क्रेडिट लिया नहीं, अब 5,40,000 ऐड कर दीजिएगा। लेट्स सी अमेंडमेंट कहाँ आई है। अमेंडमेंट आई है यहाँ। पहले ओल्ड लॉ देखते हैं। ओल्ड लॉ कहता था ए जो वैल्यू लेनी थी यानी जो क्रेडिट लेजर में एडिशन होनी थी, जो कॉमन के लिए वैल्यू यूज होनी थी, वो 5,40,000 नेट लेते थे हम, उसको ही ऐड कर देते थे। और रूल 43 कहता है डिवाइडेड बाय 60 यानी उसकी लाइफ 5 साल मानी जाती है। डिवाइडेड बाय 60 करके 9,000 रुपए पे रेशियो लगवा देता था एग्जम्प्ट और टैक्सेबल की। बट एक बात मुझे बताइएगा, अकॉर्डिंग टू यू वाज दिस रूल करेक्ट? 5 साल लाइफ कहां से लेनी चाहिए थी? राइट फ्रॉम जुलाई 2017 जब एसेट इनवॉइस रेज हुआ, एसेट खरीदा गया था और ये क्या कर रहा था, 6 महीने निकल चुके थे और 5,40 को 60 से डिवाइड करा रहा था, विच वॉज रॉन्ग इस एनॉमली को, और जिससे मेरा रिवर्सल आता था 3,600 रुपीज। I hope you are getting it. Now what the welcoming change has been brought into it, कहता है आपने ऐड तो 5,40 ही करना है, 6 लाख को इनपुट में ऐड कर दीजिएगा क्रेडिट लेजर में और 60,000 को आउटपुट लायबिलिटी रिस्पेक्टिव हेड ICS, IGST, CGST, SGST रिस्पेक्टिव हेड में जाके आउटपुट बना दीजिएगा। नेट इफेक्ट तो मुझे 5,40 ही मिला है, बट उससे डिफरेंस क्या आया,
ए जो मैं कैलकुलेट कर रही थी, मैं पहले 540 को 60 से डिवाइड कर रही थी, विच वॉज रॉन्ग, क्योंकि उसकी बैलेंस लाइफ 60 मंथ्स, 540 जो था 54 मंथ्स में डिवाइड होना चाहिए था, बट वहां तो 60 लिखा था, रिवर्सल 9000 आ रहा था, रेशियो 9000 पे लगती थी, एग्जाम टैक्सेबल की। एज अ रिजल्ट चेंज कर दिया, कहा 6 लाख को डिवाइड करना 60 से इनवॉइस वैल्यू, और इनवॉइस वैल्यू ही ए के लिए कंसिडर होगी। 60,000 रिस्पेक्टिव हेड में आउटपुट बनाइएगा। 6 लाख को 60 से डिवाइड किया, करेक्ट अमाउंट निकला, क्योंकि 60 साल की लाइफ एग्जैक्टली फ्रॉम द इनवॉइस डेट होनी चाहिए थी। तो 10,000 के ऊपर रेशियो लगी 4/10, 4,000 रुपीज। तो नोटिफिकेशन 16/2020 करेक्शन लेके आई रूल 43 में कि जो पहले गलत अमाउंट है, नोबडी रेज द ऑब्जेक्शन। क्यों? देयर वाज नॉट सो ह्यू एंड क्राई, क्योंकि रिवर्सल कम हो रहा था, 3600 हो रहा था, विज 4000 होना चाहिए था, बट रेवेन्यू रियलाइजिंग इट्स मिस्टेक corrected it and made it the exact way it should have been done. This was the first change in Rule 43 that has been brought in. What was the second change which was brought in Rule 43? Rule 43 example leke chalenge, because otherwise now it was very difficult to explain the amendment directly without an example. So I have tried to put in the example for each and everything in this Rule 43 specifically. What happened? The example is a bit lengthy, but you will enjoy doing it. There are 5 capital goods, right? सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ जनवरी 2020 का मंथ लेके चलते हैं। आपको पता है टैक्स पीरियड 1 महीने का है, 3B 1 महीने की जाती है। मैंने जनवरी 2020 में अपना जो कैलकुलेशन करनी थी, रूल 43 जो था मुझे इम्प्लाई करना था। जब मैं रूल 43 इम्प्लाई करने लगी, पहला कैपिटल गुड्स 7 लाख का, उसका इनपुट क्रेडिट था एज पर इनवॉइस। नया परचेज किया, मैंने डेट ऑफ परचेज लिख दी है, जनवरी 2020 में ही एसेट परचेज हुआ, और ये यूज हो रहा था एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई के लिए। इसका मतलब ये ए क्लॉज में कवर था 43 के, अभी मैंने बताया था टैक्सेबल सप्लाई, सॉरी बी क्लॉज में कवर था 43 के, एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल, पूरा क्रेडिट मिल जाए बिकॉज एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई के लिए। सेकेंड कैपिटल गुड था जो कि एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए था, यानी ये क्लॉज ए में कवर्ड है, इसका क्रेडिट नहीं मिलना। नेक्स्ट केम द कैपिटल गुड नंबर 3, 4 लाख का इनपुट टैक्स क्रेडिट था, और ये कॉमनली यूज मशीनरी थी, यानी रूल 43(1)(c) में कवर्ड था, कॉमनली यूज। ये तीनों ही जनवरी में परचेज हुए थे, तो इनका क्रेडिट अभी अभी ऐड होना था मेरे क्रेडिट लेजर में जनवरी के। नाउ नंबर 4, एक एसेट जो कि पहले टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज होता था, अब कॉमन में आया है। पहले खरीदा था मई 18 में, तब से वो यूज हो रहा था टैक्सेबल के लिए, लेकिन क्योंकि अब मैंने दूसरा राइस भी शुरू कर लिया ब्रांडेड, अब एग्जाम प्राइस में भी डीलिंग हो गई, तो वो कॉमन में आ गया। और 5वां ऐसा था जो पहले एग्जाम्प्ट के लिए था, अब कॉमन में आ गया। सी, पहले वाले जो 3 कैपिटल गुड्स है वो मैंने एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल, एक्सक्लूसिवली एग्जाम्प्ट और कॉमनली लिए हैं। 4 नंबर और 5 नंबर मैंने शिफ्टिंग यूज की है, क्योंकि प्रोवाइजोस में शिफ्टिंग कवर्ड है रूल 43(1)(c) के, सी और डी के दोनों में शिफ्टिंग कवर्ड है। ए कैटेगरी से बी में आया, ए कैटेगरी से सी में आया, और बी कैटेगरी से सी में आया। ना आया कौन से मंथ में? जनवरी 2020 में आया। अब देखते हैं जनवरी 2020 का क्रेडिट लेजर कैसा होगा। 7 लाख का नया एसेट परचेज किया था, राइट, फुल क्रेडिट मिल जाएगा, बी क्लॉज में कवर्ड है क्योंकि एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए था। 2 लाख का क्रेडिट मिलना ही नहीं है, एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट के लिए था, 0। थर्ड, कॉमनली यूज्ड, अभी हमने पढ़ा कॉमनली यूज्ड के केस में पहले पूरा क्रेडिट ले लेना जो भी इनवॉइस में लगा है, कैपिटल ए। रूल 43(1)(c) ने अभी अमेंडमेंट की और कहा पूरा ले लेना 4 लाख रुपए। नाउ नेक्स्ट 0, नंबर 4, अरे वो तो पहले ही टैक्सेबल के लिए यूज हो रहा था, क्योंकि पहले ही टैक्सेबल के लिए यूज हो रहा था, मैंने इसका क्रेडिट
मई 18 में ही ले लिया होगा, इस महीने तो सिर्फ इसकी शिफ्टिंग हुई है। और लास्ट वन, पहले एग्जेम्प्ट में यूज हो रहा था, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट कहती है जो पहले एग्जाम के लिए यूज हो रहा था आपने क्रेडिट नहीं लिया, लेकिन रिड्यूस करके नहीं लेना। अभी हमने पिछली एग्जांपल की थी, 6 लाख इनपुट में जाएगा और 60,000 आउटपुट में जाएगा, अल्टीमेटली 5,40,000 ही ऐड होगा। यू कैन सी इट इन द नेक्स्ट स्लाइड। 6 लाख पे 2 क्वार्टर्स का 60,000 अमेंडमेंट है, मैंने ऐड कर दिया आउटपुट में, और इनपुट में मेरे ये 3 जो थे ऐड हो गए, 7 लाख, 4 लाख, 6 लाख। अब ये रूल 43(1)(c क्या कहता है? कहता है कौन कौन से गुड्स है जो कॉमनली, कौन से यूज है, 1 और 2 तो छोड़ दो, वो तो कॉमन यूज में नहीं है। 3, 4, 5 ये 3 ऐसे कैपिटल एसेट्स हैं, ये 3 ऐसे कैपिटल एसेट्स हैं जो कॉमनली यूज हो रहे हैं। नंबर 3 डायरेक्टली कॉमन यूज में आया, नंबर 4 शिफ्ट होके आया टैक्सेबल से कॉमन में, और नंबर 5 एग्जेम्प्ट से कॉमन में। नाउ अब जो कॉमनली यूज गुड्स और जो आज के टाइम पे अलाइव है, यानी जिनकी लाइफ बैलेंस है, उन सबको ऐड कर दीजिए। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द अमेंडमेंट, कैपिटल एसेट नंबर 5। बहुत आसान कर दिया रूल, जितने एसेट आज के टाइम पे कॉमनली यूज्ड हो रहे हैं और जिनकी अभी 60 साल लाइफ एक्सपायर्ड नहीं हुई है, उन सबका क्रेडिट ऐड कर दीजिए रिवर्सल निकालने के लिए। देखो क्रेडिट लेजर में ऐड क्या होना था वो मैंने आपको यही बता दिया, 17 लाख ऐड होना है। डिलीट क्या होना है, 60,000 एक डिलीट होना है, क्योंकि वो उतने पीरियड का रिवर्सल था जो 6 महीने मशीनरी एग्जाम्प्ट में यूज हुई थी। इसके अलावा इस टाइम पे भी मशीनरी एग्जाम्प्ट और टैक्सेबल दोनों में यूज हो रही है, उसके लिए रिवर्सल कितना होना है रूल 43 में, वो अब हम कर रहे हैं। ए पॉइंट कहता है जितने एसेट 3, 4, 5, इसमें 3 एसेट यूज हो रहे हैं मेरे, 3, 4, 5 को कॉमन क्रेडिट वाले एसेट्स का इनवॉइस वैल्यू ऐड कर दीजिए, 14,80,000, राइट। वो 14,80,000 को डिवाइडेड बाय 60 कर दीजिए, अभी अभी हमने पिछली एग्जांपल में पढ़ा। उसके ऊपर ई और एफ की रेशियो लगा दीजिए, और पहले गलती क्या हो रही थी, वो नंबर 5 एसेट के लिए 5,40,000 ऐड कराता था, जिसकी वजह से वहां पे हमें प्रॉब्लम आती थी कि वो कम रिवर्सल होता था। अब उसने कहा कितना अमाउंट रिवर्स करेंगे, 9,866 ड्यू टू यूजेज इन एग्जाम्प्ट एज वेल एज टैक्सेबल, और 60,000 ऊपर, यानी टोटल रिवर्सल जो जनवरी 2020 में होगा दैट विल बी 69,000। 17 लाख में क्लेम करूंगी, 69,866 रिवर्स हो जाएगा। बट ठहरिए, इसके बाद देयर इज वन मोर चेंज। अब हम जनवरी में तो खत्म हो गए, व्हाट अबाउट फरवरी? अगेन फरवरी आया, इसमें कैपिटल गुड नंबर 6 परचेज कर लिया हमने। कैपिटल गुड नंबर 6 परचेज किया 2 लाख, और ये भी कॉमन यूज का था। तो अब मुझे बताइए, यहाँ पहले ए में कितने एसेट थे, 3, अब कितने हो जाएंगे, 4। कैपिटल गुड्स में 3, और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 2 लाख जुड़ जाएगा, नया एसेट तो 2 लाख का परचेज हुआ ना। एंड देन 43(1)(c कहता है ए में जितने कॉमनली यूज्ड एसेट है सबकी इनवॉइस वैल्यू जोड़ दो, पहले 3 थे अब 4 हो गए, 16,80,000 पे डिवाइडेड बाय 60, ई बाय एफ की रेशियो लगाएंगे, और 11,200 का मेरा रिवर्सल। Now the anomaly which was there in rule 43 has been removed, but ये करते करते एक गलती कर गए। अब वो गलती क्या कर गए, यहां से समझाती हूँ। इन्होंने ये पुराने रूल में एफ क्लॉज में टीआर आता था, टीआर, और इन्होंने कहा टीआर हम तुम्हें ओमिट करते हैं, रेशियो टीआर पे अब नहीं लग रही, वही जो पुराना और ओल्ड लॉ था, फर्क बताया। बट रूल जी में, जी क्लॉज में टीआर ही रहने दिया। अरे अगर वहां से टीआर आपने रिमूव कर दिया था तो क्लॉज जी में एक एरर रह गया, वहां पे टीआर ही यूज्ड है, रूल जी को अमेंड नहीं किया टीएम के लिए। So with this, the notification number 16 vis-a-vis rule 43(1) as regards to amendment stands covered. Now I request Iqbal sir to, if you want, you can open the session for the queries.
Aanchal ma'am, there is a query on our YouTube channel. What about Yes. 9 and 9C of 1819? What is the last date? सर 9C और 9 एंड 9C टाइम पीरियड दोनों का एक्सटेंड होके 30/6 कर दिया गया है, लेकिन जो लिमिट इंक्रीज हुई है दैट इज ओनली ऑफ 9C 5 करोड़ की, 9 की लिमिट 2 करोड़ ही है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19। ऑलराइट मेंबर्स, किसी और को कोई क्वेरी है तो प्लीज अभी पूछ लो, एल्स विल बी क्लोजिंग दिस सेशन। Sir, the voice is not audible, whosoever. हेलो हेलो, Yeah, sir. Hello. आ रही है आवाज? आ रही है? Yeah, sir. A bit, sir. It's cracking in between. हेलो, Hello. हाँ जी जी सर। अंचल, जो मेरी एक्सपोर्ट की प्रोसीड्स अकॉर्डिंग टू फेमा नहीं आती उसके रिगार्डिंग, यानी 9 मंथ्स के टाइम पीरियड में नहीं आती, यू वांट टू से दिस? 9 मंथ्स के टाइम पीरियड में हाँ नहीं जी, आती। 9 तो मंथ्स पहले मेरे को नहीं। अगर मैंने उसका रिफंड ले चुका हूँ तो मेरे को उसको विदिन 30 डेज रिफंड वापस देना है। बिल्कुल सर, 9 महीने खत्म होने के 30 दिन बाद में विद इंटरेस्ट वो रिफंड वापस देना है। अच्छा, वो मेरी क्रेडिट लेजर में जाके दोबारा स्टैंड कर जाएगा, मेरा आईटीसी बन जाएगा ना फिर वो? सर बिल्कुल जी, आप जो रिफंड वापस करेंगे, एक्चुअली वो एक्सपोर्ट ही नहीं रहेगी ना सर अब, क्योंकि आप ऐसे समझ लीजिए, आपको सर यू हैव टू पे एन अमाउंट इक्वल टू जो आपने रिफंड लिया था, वो रिफंड का यू हैव टू पे एन अमाउंट इक्वल टू अलोंग विद इंटरेस्ट। एक्चुअली वो एक्सपोर्ट ही काउंट नहीं हुई। सॉरी, एक्सपोर्ट काउंट नहीं हुई तो मेरा आईटीसी में स्टैंड कर जाना है। पहले मैंने आईटीसी रिफंड लिया था, वापस आईटीसी बन गया मेरा, एक्यूमुलेटेड आईटीसी हो जाएगा ना वापस। इसी कैसे? You are paying an amount. How it will be recredited to your credit ledger? No, it will not recredit to your credit ledger. अच्छा, चलो, उसके बाद मेरे को उसका आईजीएसटी भी पे करना है। सर आपको आईजीएसटी वो रिफंड ही वापस करना है, बेसिकली आपको वो रिफंड वापस कर दिया, इसका मतलब आपकी वो ट्रांजैक्शन टैक्सेबल हो गई। टैक्सेबल हो गई। हाँ जी। अब अगर दोबारा से मेरी प्रोसीड्स मेरे को जब आएंगी एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन ऑफ दैट वन प्रोसीड्स, तो मेरे को उसका रिफंड फाइल करना है दोबारा से। वो रिफंड किस कैटेगरी में फाइल होगा? रियलाइजेशन के 3 मंथ बाद में आप दोबारा से रिफंड अप्लाई कर सकते हैं। किस कैटेगरी में? क्या कह रहे हैं आप? किस कैटेगरी में? कैटेगरी सेम ही रहेगी। आप समझिए, अब जब आप रिफंड अप्लाई करेंगे, अब जब आप, पहली बात इसका प्रोसीजर अभी तक आया नहीं है, वन थिंग। सेकेंडली, अभी ये नोटिफिकेशन फ्लो की है। सेकेंडली, एज टू आवर नॉलेज, आप जब रिफंड अप्लाई करेंगे, अब देखना पड़ेगा कि आप जब रिफंड अप्लाई करेंगे तो वो करंट में आपको प्रोसीड्स आई होंगी ना सर। तो अगर तो बैक पीरियड में जाके करेंगे तो अदर्स कैटेगरी में करना पड़ेगा, क्योंकि सेम कैटेगरी का उठाएगा नहीं। और विज़ करंट कैटेगरी में, अगर करंट पीरियड में करेंगे तो आप सेम कैटेगरी में कर पाओगे। सेम कैटेगरी में कर पाओगे अगर वो करंट पीरियड का एज अ रिफंड जो है, बिकॉज द नोटिफिकेशन सेज, इफ आई गो बाय द नोटिफिकेशन, last para says that where the sale proceeds are realized by the applicant after the refund has been recovered, the applicant produces evidence within 3 months from the date of realization, shall be the amount recovered shall be refunded to the extent the proceeds are realized within such extended period. तो वो रिफंड आप रिक्लेम कर सकते हो, देन यू हैव टू गो टू अदर्स कैटेगरी। मैं रिफंड रिक्लेम कर सकता हूं, लेकिन मेरे को उसमें कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी। अदर्स कैटेगरी सर, अदर्स कैटेगरी बिकॉज़ सेम कैटेगरी रिफंड कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर विद एलयूटी और ऑन द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। Be it the anyway, sir, rule the amendment to Rule 96B covers both, be it be under export or LUT or export payment of tax. But I differ in this regard. Later on, a clarification can come कि ये उस पीरियड में जाएगा कि ये रियलाइजेशन के पीरियड का रिफंड माना जाएगा। चलो ठीक है, थैंक यू। Any other query, members?
So Hello, there are ma'am. a few queries on Hello. WhatsApp. Priyanka has asked, we need to add invoice value or taxable value. Where? If you're asking it for Rule 43, we have to invoice input in the invoice value. I should say this, Priyanka. If it is related to Rule 43(1), it is input in the invoice value. Then apart from it, there is a query. What about 9 and 9C? We have already covered. Manish sir has asked, while the rule apply as is applicable in FEMA, that is the date of shipment of goods. Yes, sir, for that we will have to refer to FEMA. The time period as prescribed in FEMA will apply. We have to refer to that. Aadhaar authentication in which form? Sir, no specific form has been specified. वो REG 01 में जब हम अपना आधार डालते हैं वो उसी के थ्रू ऑथेंटिकेट करेगा, कोई सेपरेट फॉर्म जो है नहीं है. उसी में मैंने दिखाया आपको कि कॉलम है जिसके थ्रू वो आधार ऑथेंटिकेट करेगा, बट अभी कोई प्रोसेस में चेंज नहीं हुआ है, मैंडेटरी कर दिया गया है, और अगर नहीं कराते तो फिजिकल वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी. राइट? Gaurav ji, please go ahead with your query. Ma'am, I just want to share a rejection memo with you, which I just got today afternoon. उसमें ना कुछ मुझे समझ नहीं लगी कि वो बंदा चाहता क्या है. So I'm just trying. I'll request. Anyway, you can share it on my WhatsApp. I will have to check for. आप शेयर करना, मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ जी. 1 मिनट. वो एक्चुअली डिस्कस करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अब तो जैसे आपने लॉकडाउन भी बढ़ गया है अब तो उसका हल करना पड़ेगा. कोई एप्लीकेशंस एक्सपायर हो रही है, एक क्वेरी भी थी बीच में, रिफंड की जो पीरियड एक्सपायर हो रहे हैं मार्च टिल 29th of June, यानी 2 साल के जिनके टाइम पीरियड वहां डेट से खत्म हो रहे हैं, those time period stand extended covered by blanket exemption notification 35/2020, right? And let me check my phone, sir. आप शेयर करना, फिर मैंने आपको Sir, शेयर apart from this, any other query related to topic? ये मैम इन्वर्टर ड्यूटी का था. Wrong ITC claimed. आपने LUT के अंदर किया था गौरव सर? इन्वर्टर ड्यूटी का है ये. नहीं मैम, इन्वर्टर ड्यूटी का है ये, एक्सपोर्ट का नहीं है. हाँ जी, इन्वर्टेड ड्यूटी का. अच्छा, LUT में नहीं था. This has been reference to application. और and just even last line, the people are just inquiring from us that these 5 people, these 5 suppliers, the people are insisting us that their credit should be under service head, जबकि हमने इसका कोई क्रेडिट ही नहीं लिया. हमने I tell you, the same query came to me also. Let me tell you, Gaurav sir, मैंने भी जब इन्वर्टेड ड्यूटी का रिफंड अप्लाई किया था, जो क्वेरी आपको आई है, ये क्वेरी मुझे ऑरली रेज करी गई थी, जिसका मैंने रिप्लाई दिया था, बिकॉज अब मैनुअल कन्वर्सेशन जो है वो नहीं है. एक्चुअली क्या था, जैसे ओमकार प्रोसेसर है, इन्होंने क्या किया, मुझे भी क्वेरी की, भाई ये प्रोसेसर है, ये तो आप ये जॉब वर्क से रिलेटेड होगा, और क्योंकि आपका रिफंड इस कैटेगरी कवर्ड है इन्वर्टेड ड्यूटी में, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द रिफंड ऑफ सर्विसेज कैटेगरी का रिफंड आपको एलिजिबल नहीं है, तो आपने इनके इनवॉइसेस को कैसे इंक्लूड कर लिया? तो वैसे क्या था, मेरा उनसे प्रोसेसर थे बट मेरी परचेज हुई थी, एंड आई जस्टिफाइड टू देम कि मेरी सर्विसेज नहीं है, मेरे गुड्स ही हैं, तो दे अलाउड मी. अब नाउ यू हैव टू चेक कि ओमकार, क्योंकि सारे सर्विसेज वाले ही सिलेक्ट किए हैं, ओमकार प्रोसेसर्स, कैलाश प्रिंटिंग, देन शिवम एम्ब्रॉयडरीज, डायमंड एम्ब्रॉयडरी, वी आर सेइंग कि दिस इज इन इनपुट सर्विसेज, and because input services are ineligible under inverted duty structure, तो आपने गलत क्रेडिट 3,19,700 रुपए का क्लेम किया. I hope it's clear, sir.
हाँ जी मैम, अगर कोई आपके पास ड्राफ्ट रिप्लाई हो तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये Sure, फर्स्ट टाइम sir, है but अभी। I don't know कि आपका ये इनपुट सर्विसेज में कवर था, इनके पास इनपुट सर्विसेज के हैं कि परचेज के हैं। For that, firstly check the bills of these parties. अगर वो इनपुट सर्विसेज के होंगे तो वो एलिजिबल नहीं है। मैम वो सर्विस के नहीं है कोई, दैट वी आर वेरी मच श्योर, सर्विस का नहीं है, वो देख के अप्लाई किया गया। Okay, sir, then we can see, we can show that. I will share the reply, sir, then in that case. Any other Thank you. query, sir? Shashi ji, let me tell members Thank about you the so much, upcoming sir, seminars. and the branch for giving me. Hello. I'd like to inform the members about the upcoming seminars. We have one session tomorrow morning at 11:30, which is Introduction to Cloud-Based Accounting and Training on QuickBooks. So this is an accounting software which you can use online and can work from anywhere. Then there is a session on the ClearTax software, which is used for GST filings. That too is a part of a work from home series. That session is on Monday at 11:30 a.m. again. And there's another session on Tuesday, which is digitizing your practice. That will be taken by a CA from Bangalore. That will be on Tuesday at 5 p.m. in the evening. So tomorrow morning, Saturday morning 11:30, Monday morning 11:30, and then Tuesday evening 5 o'clock. We have work from home series seminars for all of you. Thank you. Shashi ji, please continue. Thank you, Aanchal ma'am, for your informative and interactive session. I hope the members have benefited a lot from this session. Now I request CA Pooja Trikha ma'am to kindly give vote of thanks. Welcome, Pooja ma'am. Hello. I think we lost. I think most of the mem hello. Am I audible? Yes. Yes, you are audible. You are audible. Haji. Thank you, Aanchal, and it was a wonderful session. And I thank the Amritsar branch for taking the initiative. हम लोग घर में बैठ के वैसे तो पढ़ाई कर रहे हैं, but this live interaction actually adds on to it. And queries तो आंचल के साथ हम लोग वैसे डिस्कस करते रहते हैं. Thank you, Aanchal, from bottom of my heart and from everybody else's also, because it's always a pleasure to listen to you. It's always my And, pleasure, especially when it's my home branch. So nothing like that. And Aanchal, I would say like this period has actually given us this insight कि कुछ तो we were always thinking कि हमारे बिना दुनिया रुक जाने वाली है. So दुनिया actually continue रहती है. We all are work in progress. We should make the best of this COVID-19 period, which has been given to us by God to actually self-introspect and start spending good time with the family and children, which we I think had lost for last 3-4 years. Living in peace now actually gives us this insight कि भैया तुम कुछ नहीं हो, थोड़ा अपने आप को सेल्फ वो करना बंद करो और एंजॉय करो नेचर को भी. पूजा मैम कहना चाह रहे हैं कि जब से जीएसटी आई है हमने पीस ऑफ माइंड या टाइम स्पेंड करना बच्चों के साथ खत्म कर दिया था. बिल्कुल. और एक्चुअली बच्चे यही कह रहे हैं कि भाई ये मम्मा आपके पास तो टाइम ही नहीं होता था. So I think this is the best time we can have with the family. Let's all make the best of it. Enjoy it to the full. Praying to Almighty that this period gets over very quickly and we all become good people, more knowledgeable, and I think we make best use of this. So with this, I hand over to Sashi. I think you can close the session now. Thank you, Pooja ma'am. Today's session was very interactive and there were 80 to 85 participants joined us, including 12 to 13 joined on YouTube. Now we will be back tomorrow 11:30 a.m. Kindly join the session for tomorrow. Shashi ji, there is one participant from Mumbai, Sapna Agarwal. She is asking for the PPT of Aanchal ma'am and contact details of Aanchal ma'am, because she is not involved in any group of Amritsar. मैंने कर दिया WhatsApp पे भेज दिया उनको. भेज दिया WhatsApp पे मैंने उनको. Okay.
Okay. So the PPT is Thank you. already being shared with the brand, and they have shared in the groups too, I guess. Yes, already shared with in Yeah. WhatsApp groups. Yes. Thank you, members. Now this session is over. Thank you, Please sir. enjoy Thank your you. tea at home.